Indian and Western culture? So we have already discussed. Fine. Have we taken down the notes? Indian and Western difference. ठीक है. So to do, we will take down the notes and then we will proceed on to the another topics of the syllabus, that is Ved and Upanishad. So we have already discussed the nature of philosophy, definition of philosophy, branches of philosophy, its relationship with culture and religion, and finally the difference between Indian and Western philosophy. So the next topic of your syllabus is Ved and Upanishad, and in that you have to study three concepts: Brahma, Atma and Reet. Then you have the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में फिर आपको तीन concepts पढ़ने. Sorry. So first take down the notes with respect to Indian Western philosophy. Then we will proceed on to the Ved and Upanishad. ठीक है? अच्छा. So all of you have this compilation PYQ. You have got this. So from now onwards, whenever we complete one topic, you go and refer back to this compilation and try to write answers. ठीक है? अब से हम ये काम शुरू करेंगे. Write your answers, show it to me after the class. I will be waiting outside for you. है ना? तो हम डेली बेसिस पे ये काम करेंगे. आप आंसर राइटिंग जितना करेंगे, अल्टीमेटली उसी से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जाम में डिटरमाइन होगा. ठीक है? एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज डेवलप्ड ओवरनाइट. It has to be a continuous process. Over a period of time, you gain the skill of how to write effective answers. So please do it on a daily basis. ठीक है? सभी के पास है ना, या जिनके पास नहीं है आप ऑफिस से ले लीजिएगा. ओके, फाइन. सो टेक डाउन द नोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द हेडिंग इंडियन एंड डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी. डिफरेंस बिटवीन Indian and Western philosophy. Take the heading difference between Indian and Western philosophy. Difference between Indian and Western philosophy. Indian and Western philosophy. So what we will do, we will have a table. On left hand we will have the Indian philosophy, and on the right hand we will have the Western philosophy. So in questions which demand comparison between two things, so you can prefer to have a tabular format of answer writing. That will give a better structure as well as presentation of your answer. Western philosophy. Western philosophy. Okay, so we will have a table like this. You can write in the form of paragraph also. There is no such restriction, but such tabular format can improve overall structure. So first under the Indian philosophy you write, philosophy is understood as a pursuit of a pursuit of pursuit का मतलब journey. Philosophy is understood as a pursuit of self-realization and betterment. Self-realization and betterment. Pursuit of self-realization and betterment of individual as well as betterment of individual as well as society. Betterment of individual as well as the society. उसी में आगे लिख लीजिए, it is a spiritual exercise. It is a spiritual it is a spiritual exercise. It is a spiritual exercise. It is a spiritual exercise. Western में लिखिए, philosophy is understood as, under Western, philosophy is understood as love for knowledge or wisdom. Philosophy is understood as love for knowledge or wisdom. Love for knowledge or wisdom. Love for knowledge or wisdom. It is a pursuit of
after full stop, it is a pursuit of knowledge. It is a pursuit of knowledge and is an intellectual exercise. It is the pursuit of knowledge and is an intellectual exercise. Is an intellectual exercise. Intellectual exercise. So Indian philosophy, it is more so spiritual exercise. Western philosophy, it is more so an intellectual exercise. अच्छा, नेक्स्ट लिखिए इंडियन फिलॉसफी में, कंसीडर्स इनर एक्सपीरियंस, कंसीडर्स इनर एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड इंट्यूशन, INTUITION, इंट्यूशन, inner experience, intuition and contemplation as, and contemplation, CONTEMPLATION, contemplation. contemplation मतलब आत्मचिंतन, कंtemplate करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन. कंटेम्पलेशन के बजाय आप सेल्फ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, दैट विल बी एन इजियर वर्ड. सो ऑलवेज प्रेफर इजियर वर्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख लीजिए. Considers inner experience, intuition and self-reflection as sources of knowledge. As sources of knowledge. As sources of knowledge. After full stop. It prioritizes spiritual insight. हाँ, उसी में. It prioritizes spiritual insight along with. It prioritizes spiritual insight along with logical reasoning. Spiritual insight along with logical reasoning. Logical reasoning हो गया. वेस्टर्न में लिखिए, it considers critical thinking. It considers critical thinking, argumentation. It considers critical thinking and argumentation as tools for acquiring knowledge. It considers critical thinking and argumentation as tools for acquiring knowledge. Tools for acquiring knowledge. इंडियन में लिखिए थर्ड पॉइंट अंडर इंडियन फिलॉसफी. Emphasizes on spiritual and transcendental aspects of, emphasizes on spiritual and transcendental, TRANSCEN, on spiritual and transcendental. Transcendental, spiritual and transcendental aspects of reality. Transcendental aspects of reality. Inquires into the nature of, full stop के बाद आगे लिखिए, inquires into the nature of self. Inquires into the nature of self, SELF, self. Inquires into the nature of self, in bracket atma, ATMAN, self in bracket atma, comma, ultimate reality in bracket brahma, BRAHMAN, brahma, atma, then brahma, ultimate reality in bracket brahma. Brahma and the path to liberation, and the path to liberation, and the path to liberation in bracket moksha, 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 and the path to liberation, moksha, from the cycle of birth and death. Path of liberation in bracket moksha and the cycle, from the cycle of birth and death, from the cycle of birth and death in bracket samsar, SAMSARA, cycle of birth and death. तो संसार का क्या मतलब है? जन्म मरण का चक्र, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ब्रैकेट संसार.
वेस्टर्न में लिखिए मोर फोकस्ड ऑन रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ, मोर फोकस्ड ऑन रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, मोर फोकस्ड ऑन रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ, रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन ब्रैकेट सब्सटेंस, अल्टीमेट रियलिटी इन ब्रैकेट सब्सटेंस। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में अल्टीमेट रियलिटी को सब्सटेंस कहा गया है। अल्टीमेट रियलिटी इन ब्रैकेट सब्सटेंस कॉमा मैटर एंड माइंड, मैटर एंड माइंड, मैटर एंड माइंड, मैटर एंड माइंड थ्रू रीजन लॉजिक एंड, थ्रू रीजन REASON, थ्रू रीजन लॉजिक एंड empirical observation, matter and mind through reason logic and empirical observation, reason logic and empirical observation। इंडियन फिलॉसफी में आगे लिखिए originated in the Indian subcontinent, originated in the Indian subcontinent, originated in the Indian subcontinent, Indian subcontinent for example Vedic Upanishadic philosophy, originated in the Indian subcontinent for example Vedic Upanishadic philosophy, Vedic Upanishadic philosophy, Vedic Upanishadic philosophy, Buddhist and Jaina philosophy, Vedic Upanishadic philosophy comma Buddhist and Jaina philosophy etc, वैदिक उपनिषदिक फिलॉसफी कॉमा बुद्धिस्ट एंड जैना फिलॉसफी etc। वेस्टर्न में लिखिए ओरिजिनेटेड इन यूरोप, अंडर वेस्टर्न ओरिजिनेटेड इन यूरोप, originated in Europe, particularly ancient Greece, originated in Europe, particularly ancient Greece. For example, philosophers like originated in Europe, particularly ancient Greece, 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 ancient Greece. For example, philosophers like Thales, philosophers like Thales, 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 Pythagoras, philosophers like Thales, Pythagoras, Socrates, 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 Plato, 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 Aristotle etc, Socrates, Plato, Aristotle etc. So these were the fathers of the Western philosophy, है ना, एरिस्टोटल etc। नेक्स्ट इंडियन के नीचे लिखिए अंडर इंडियन फिलॉसफी, इट व्यूज द इंडिविजुअल सेल्फ एज, इट व्यूज द VIEWS, it views the individual self as part of, it views the individual self, VIEWS, views the individual self as part of a larger interconnected, large as part of a larger interconnected ultimate reality, individual self as part of a larger interconnected ultimate reality, इंटरकनेक्टेड अल्टीमेट रियलिटी। इसका क्या मतलब है? इट व्यूज इंडिविजुअल सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ लार्जर इंटरकनेक्टेड अल्टीमेट रियलिटी। इसका क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन? इंडिविजुअल सेल्फ को एक लार्जर इंटरकनेक्टेड अल्टीमेट रियलिटी के एक हिस्से के रूप में देखता है इंडियन फिलॉसफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सब एक हैं, ठीक है। एक उसका मतलब हम कह सकते सरल भाषा में कि द इंटायर रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी है ना, द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, हाउ इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस, द वाइडेस्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस। अल्टीमेट रियलिटी का लॉजिकली एग्जिस्टेंस कैसा होगा? स्पेशियली और टेम्पोरली लिमिटेड या फिर इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, तो लार्जेस्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए लार्जर रियलिटी की बात हो रही है। क्या उससे कोई चीज बाहर होगी या उससे डिस्कनेक्टेड होगी? वाट एवर रियलिटी और एग्जिस्टेंस इज देयर, कैन इट बी आउटसाइड और डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड विद दैट अल्टीमेट रियलिटी?
No, so everything should be interconnected. Now, if we are a part of that ultimate reality, can we be disconnected with the ultimate reality or the components? So follow the logic, so no. So essentially Indian philosophy focuses on that interconnectedness of individual self and the larger ultimate reality. पेन से ब्रश मत करिए क्लास में, टूथब्रश से ब्रश करिए क्लास, मतलब पहले से करके आइए टूथब्रश से ब्रश, है ना. पेन इज फॉर राइटिंग पर्पस, नॉट ब्रशिंग योर टीथ, डोंट टेक इट इन योर माउथ एंड बी अटेंटिव. तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई. लार्जर इंटरकनेक्टेड रियलिटी, तो इंडिविजुअल सेल्फ उसका एक हिस्सा है. अच्छा, उसमें लिखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में इट टेंड्स टू एम्फसाइज इंडिविजुअलिज्म. It tends to, TENDS, it tends to emphasize individualism. It tends to emphasize individualism, autonomy. It tends to emphasize individualism, autonomy, and importance of individualism, autonomy, and importance of individual rights and importance of individual rights and RIGHTS, individual rights and freedom, individual rights and freedom. अब इसका क्या मतलब है? जैसे इंडियन फिलॉसफी, इसका आउटलुक क्या है? इट सीज द इंटायर रियलिटी एज वन, इंटरकनेक्टेड, one and interconnected. That's why the individual, it is also an essential necessary part of that interconnected reality. अब अगर ये आउटलुक हम अपनाते हैं, नाउ सी हाउ डज आउटलुक इट ट्रांसफर्स इनटू सोसाइटल राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ से जुड़े हुए हैं, देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट आर दे सेपरेट? अकॉर्डिंग टू द आउटलुक ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सभी ध्यान से बात को सुनिए. इंडियन फिलॉसफी का जो आउटलुक है वो क्या कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ दैट होल, दैट इटर्निटी, दैट इंटरकनेक्टेड reality. So is our interest separate or different from the collective interest? No. That's why in Indian philosophical system, as outcome of Indian philosophical system, जो इससे सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी निकली भारत में, उसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट पर भी उतना ही इम्फेसिस है. So as much there is emphasis on individual interest, as much on the group or the collective interest, at times it prioritizes group interest over individual interest. तो वो आपको individual rights और जो group rights हैं उसमें जब भी क्लैश होता है तो हम group rights को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, है ना. तो उसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल आइडिया है वो यही है ना. इज इट क्लियर? लेकिन जो वेस्ट का कंस्ट्रक्ट है फिलोसफी का, व्हाट डू दे कंसीडर? दे कंसीडर दैट इंडिविजुअल्स दे फॉर्म द रियलिटी. रियलिटी क्या है? वो इंडिविजुअल से, बस आउटलुक का डिफरेंस है और उससे पूरा सोसाइटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. हमारा इंफेसिस क्या है कि एक रियलिटी है और उसके सभी पार्ट हैं, एक होल है उसके सभी पार्ट हैं. उनका इंफेसिस क्या है कि नहीं, कई सारे इनफाइनाइट पार्ट्स हैं, उनसे मिलकर एक होल बना है. इफ यू से द ग्रुप, द सोसाइटी, सो ह्यूमंस दे केम फर्स्ट और द सोसाइटी केम फर्स्ट? पहले ह्यूमन इंडिविजुअल्स आए तब ना समाज बना, तब शहर बसे, तब स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो फर्स्ट द इंडिविजुअल्स आर देयर, द पार्ट्स आर देयर, दे टुगेदर फॉर्म द होल. नाउ इफ यू कंसीडर दिस व्यू, then which becomes more important, the individual or the collective? The individual, as individual is the entity which forms the collective, the entirety, the whole. That's why the focus of Western philosophy is on individual rights, individual freedom, autonomy, that we are autonomous agents, autonomous entities, autonomous individuals. Why? We form this whole, we form this entirety. We means everything which is there, living, non-living, all the individual entities, they form the ultimate reality. That's why you will find that from the ideas of Socrates, Plato, or Aristotle, from the ideas of Aquinas, from the ideas of Descartes, the social political philosophy which emerges, that brings individualism, that emphasizes on individualism. तो उनके जो दर्शन थे उस पे फिर आपको सामाजिक राजनीतिक दर्शन भी उससे बहुत ज्यादा विकसित हुए. पर भारत में चूंकि ट्रांसीडेंटल फोकस ज्यादा था, हमने पढ़ा स्पिरिचुअल और ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान थे,
इसीलिए जो इंडिविजुअल्स से रिलेटेड सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी से उतनी एमर्ज नहीं हो पाई। इसका कारण यह हुआ कि जब हमारे पास वैसा सामाजिक राजनीतिक चिंतन नहीं था या उसका अभाव था, तो हमने वेस्ट के डेमोक्रेटिक मॉडल्स या पॉलिटिकल मॉडल्स को हमने अडॉप्ट किया। हालांकि इसके ऊपर भी डिबेट होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसके हमारे यहाँ भी प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। वी हैव एविडेंसेस ऑफ democratic republics in the past, but they were not as functional, they were not as systematic or conceptualized as they are in the western system. क्या वैसा सिस्टमैटिक हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इतिहास में था? नहीं, कहीं कहीं आपको इक्के दुक्के उदाहरण जरूर देखने को मिलते हैं, बट लार्जली द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इट वाज बेस्ड अपॉन मोनार्की, द स्टेट सिस्टम ऑफ मोनार्की उसी के ऊपर आधारित था ना, उसी के ऊपर आधारित था। तो वहां पर ये जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ, फिलॉसफी जो सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी का इवोल्यूशन हुआ, ये आपको वेस्ट में ज्यादा इलैबोरेट दिखता है। इसका कारण यही है कि जो उनका बेसिक आउटलुक है वो मानते हैं कि पार्ट्स दे फॉर्म द होल एंड वी कंसीडर दैट द होल दैट इज परमानेंट एंड द पार्ट इज टेम्पररी। आदमी आज है कल नहीं है, कोई वस्तु आज है कल नहीं है। सो दिस टेम्पररी कैरेक्टर, वी फोकस्ड ऑन द टेम्पररीनेस ऑफ रियलिटी, we focused on the temporariness of reality and the permanence of the ultimate reality। तो हमने क्या कहा कि भाई जो कलेक्टिव है, जो एग्रीगेट है, उसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया। इसीलिए जो इंडिविजुअल सोसाइटल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इंडियन फिलॉसफी से उतना इलेबोरेटिव तरीके से डेवलप नहीं हुई। इज इट क्लियर? है ना? तो भारत में जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है ये आपको मॉडर्न टाइम्स में ज्यादा देखने को मिलता है। द मॉडर्न फिलोसोफर्स, है ना, द मॉडर्न फिलोसोफर्स, अरविंदो, गांधी, टैगोर, ऑल दीज इंडिविजुअल्स। ठीक है? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या लिखा है आपने? इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स लिख लिया। इंडियन फिलॉसफी में आगे लिखिए, मोर इंटरेस्टेड इन। Now you tell me that we had discussed 5 branches of philosophy. What are they? Can you tell? बताइए। Metaphysics, ethics, good. Logic, aesthetics, epistemology. ठीक है, 5 ब्रांचेज हैं। तो इंडियन फिलॉसफी एज इट इज फोकसिंग ऑन द स्पिरिचुअल एंड द ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, तो उसका फोकस इन 5 ब्रांचेज में से किस पर होगा? Obviously metaphysics पर होगा। Then how to know about that reality? So our focus was on transcendental reality. So when it comes to reality, metaphysics is the study of reality. So we had focused more on metaphysics. Then how to know that ultimate reality? We were focused on epistemology. Then as we were focused on the spiritual element of life, spiritual aspect, so we were more interested into finding good and bad, है ना, truth and false, wrong and right. That's why our focus was on these 3 branches: metaphysics, epistemology and ethics. More interested in metaphysics, write down, more interested in metaphysics, epistemology and ethics. More interested in metaphysics, epistemology, EPISTEMOLOGY and ethics. Western में लिखिए, inclined towards। अब चूंकि उनके लिए फिलॉसफी क्या थी? लव फॉर नॉलेज, सो दे वेयर inclined more towards study and analysis of knowledge, epistemology. And if you are getting into epistemology, you must have the right way to reason, that's why logic. And then finally they were more concerned about the experiential aspect of reality, that's why more focused on appearances, their perception, that's why aesthetics. Okay? तो इन चीजों को याद नहीं करना है। अगर आप उनके बेसिक कैरेक्टर को समझेंगे, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इम्प्रॉम्प्टू एनीवेयर। ओके, लिखिए, इंक्लाइन टुवर्ड्स एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट अंडर इंडियन फिलॉसफी, अल्टीमेट गोल इज लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। Ultimate goal is liberation of the individual. Ultimate goal is liberation of the individual. Ultimate goal is liberation of the individual. That is moksha or nirvana. That is moksha, MOKSHA. That is moksha or nirvana.
और भी कई कई नामों से, अपवर्ग, कैवल्य, इन सभी नामों से हम जानते हैं। मुक्ति, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज मोक्ष और निर्वाण और कैवल्य, etc. Then under Western philosophy, ultimate goal is, under Western philosophy, ultimate goal is satisfaction of intellectual doubt. Ultimate goal is satisfaction of intellectual doubt. Ultimate goal is satisfaction of intellectual doubt and explanation of existence. And explanation of existence. And explanation of existence. Now, explanation of existence. Now under Indian philosophy, adopts various approaches of, adopts, ADOPTS, adopts various approaches of Gyan, Bhakti, various approaches of Gyan, Bhakti and Karma, Gyan, Bhakti and Karma, to reach the final goal of liberation, to reach the final goal of liberation. Adopts various approaches of Gyan, Bhakti and Karma to reach the, REACH, to reach the final goal of liberation. वेस्टर्न में लिखिए, acquires a scientific and mathematical approach, acquires a scientific and mathematical approach to solve the questions of, acquires a scientific and mathematical approach to solve the questions of life and existence, to solve the questions of life and existence, to solve the questions of life and existence. Is it clear? स्पष्ट है एकदम, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, तो अब अगर लॉन्ग फॉर्मेट भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। याद नहीं करना है, रिवीजन करते समय भी जो लॉजिक है उसके पीछे उसको समझना है कि डिफरेंशिएशन क्यों है, किस बेसिस पर है। तो सबसे जो बेसिक रीजन है वो आउटलुक का ओरिएंटेशन का डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम में, और उससे जो कंसिक्वेंसेस फॉलो होती हैं उसको समझना है। उसका गोल क्या है, इनका गोल क्या है, किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस है, क्या अप्रोच या मेथड अपनाया गया है, तो उसी बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना है। इज इट क्लियर? इसलिए आप देखते हैं कि वेस्ट में जो फिलोसफर्स हुए उसमें से हालांकि ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आमतौर पर मोस्टली they remained limited to intellectual and academic exercise itself. उसमें से संत महात्मा नहीं हो गए, लेकिन भारत में जो दार्शनिक हुए वो अपने आप में ही संत महात्मा हो गए। क्यों? क्योंकि जो इंडियन फिलॉसफी का प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल है, that essentially leads to transformation of the individual. Now if your mind is removed of all doubts, if your mind is removed of all sorts of attachments, will you remain the same person? Will you behave in the same way? मान लीजिए कि आपको एंगर, जेलसी, फिजिकल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, ऑल दीज थिंग्स, अगर आपका मन इससे डिटैच्ड हो गया तो आपके जो बिहेवियर पहले थे और बाद में थे एक जैसे होंगे? नहीं होंगे ना। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फिलोसोफाइजिंग और कंटेम्पलेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, व्हेन यू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ वीकनेसेस और इश्यूज ऑफ आवर माइंड और लाइफ, देन यू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट। वाई? यू हैव नो डाउट। आप किस कंडीशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे? बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त हैं तब, कि कोई दुविधा नहीं है तब? कोई दुविधा नहीं है तब होंगे। सो इट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल। यदि आपने देख लिया कि भाई सभी चीजें टेम्पररी हैं, तो क्या आप लोभ लालच करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? पूर्णतः ईमानदारी का पालन करेंगे। यू विल बी थॉरो, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन योर लाइफ टाइम। यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दी गुडनेसेस, सो दैट विल लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संत आदमी कहते हैं। उसी को संत कहते जिसमें कोई कमी ना हो, बहुत दयालु हो, उदार हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, ऑनेस्ट हो, करेजियस हो, उसी को हम बोलते हैं, है ना। सो द पर्सन ट्रांसफॉर्म्स, सो देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। लेकिन वेस्ट में हमने क्या देखा? अब जैसे डेकार्ट जैसे फिलोसफर्स हैं तो उन्होंने खूब रिगरस फिलॉसफी की, लेबनिज जैसे फिलोसफर खूब रिगरस फिलॉसफी की। तो ऐसा नहीं कि संत महात्मा बन गए, कि डेकार्ट संत बन गए, लेबनिज संत बन गए, उनके अपने अपने अनुयायी हो गए, सबने जाके कुंभ मेला में अखाड़ा बना लिया। ऐसा तो नहीं किया, पर यहाँ सबके अखाड़े खुल गए, है ना। तो शंकराचार्य और इन सभी के, तो इनके अनुयायी हो गए। क्यों? उनको लगा कि इस रास्ते पर चल के हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके अनुयायी हो गए। जो प्लेटो के या जो आपको एरिस्टोटल के जो फॉलोअर्स थे वो उनके स्टूडेंट्स थे,
वो उनके क्या थे, स्टूडेंट्स थे। यहाँ स्टूडेंट्स कम फॉलोअर्स थे, इसीलिए भारतीय दर्शन में आपको वो भक्ति का, जो अपना गुरु है या जो मान लीजिए कि जो मास्टर है, उसके प्रति एक भक्ति का भी भाव दिखता है। क्योंकि जब उसको सामने किसी व्यक्ति के चरित्र में इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जब उसकी पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, तो उसके प्रति वो डिवोटेड महसूस करता है ना। पर वेस्ट में वो इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप है ना। तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा कहां से विकसित हुई, इसी से विकसित हुई, ज्ञान की खोज से विकसित हुई, ठीक है। अच्छा, उसमें वो मोरल एलिमेंट कहां से आया, डिवोटेडनेस टुवर्ड्स द मास्टर और द गुरु और द टीचर। फ्रॉम दैट एस्पेक्ट the person has transformed himself or herself and he or she has the potential to transform others as well. Okay, fine. ये सभी को स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट किसी को, anyone? डिफरेंसेस में कोई डाउट, anyone? Shall we move to the next topic, that is Ved and Upanishad. So now we will discuss Ved and Upanishad. Ved and Upanishad. वेद एंड उपनिषद। और वेद और उपनिषद में आपको तीन चीजें पढ़नी है, द आइडिया ऑफ ब्रह्म, द कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड फाइनली रीत। एंड फाइनली रीत, इसको RIT भी लिखते हैं या R के नीचे डॉट देकर भी लिखते हैं। नाउ वेद एंड उपनिषद में ये तीन चीजें पढ़नी है, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल try to understand what is Ved, what is Upanishad, have a background of the Ved and Upanishad. वेद किसे कहते हैं? आपने वेद पढ़ा है? कोई वेद पढ़ा है? वेद नहीं पढ़ा है, देखा है? वेद की पुस्तक देखिए, ग्रंथ देखा है? कहीं किताब दुकान पे देखा होगा, स्टेशनरी नहीं, मंदिरों में कहीं रखा देखा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगली बार जाएंगे किसी स्टेशनरी दुकान या मंदिर में ध्यान देंगे तो रखा मिलेगा। वेद क्या है? व्हाट आर वे? एंशियंट नॉलेज है, फाइन। सो दे आर टेक्स्ट, ग्रंथ हैं वो, है ना। सो वेद इज द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज। द इंटायर इंडियन फिलोसफी, इफ यू सी, यू कैन फाइंड द ओरिजिन ऑफ इंटायर इंडियन फिलोसफी इन वेदास। सो दे आर एंशियंट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट, दो ओरिजिनली दे वर नॉट रिटन इन रिटन फॉर्म, क्योंकि उस समय रिटन फॉर्म उतना प्रचलित नहीं था, उतने साधन नहीं थे लिखने के। So what did people do? They used to pass it from one generation to another by oral traditions. By oral traditions. Reciting of the Vedic mantras, reciting of the Vedic hymns. बात आ रही है समझ में? तो वो रिसाइटेशन के माध्यम से, ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर होता था। एंड दैट्स हाउ द वैदिक नॉलेज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुरु टू शिष्य, फ्रॉम द मास्टर टू द प्यूपिल, स्टूडेंट। इज इट क्लियर? So Ved, they are the origin of Indian philosophy, the most ancient source of Indian philosophy. और उनका time period क्या है? At what time the Vedas they originated? What is the time period if you have studied in ancient history? Around 1500 BC. So there are various estimates like 2500 BC, 4000 BC, but the most accurate or authentic estimation is about 1500 BC. But Vedas, they were not originated or designed in a particular time period. So their origin, so it is spread over a span of time. It is spread over a span of time. कुछ जो आपको वेद थे वो बाद में जोड़े गए after 300-400 years. So they have their origin of about 1200 BC. So Vedas, they were originated over a period of time. They don't have a specific century or year when they were produced. So वेद को लिखा किसने, या वेद कहां से आया? क्या वेदों की रचना किसी ने की? इज देयर द क्रिएटर ऑफ वेदास? वेद का कोई लेखक है? अच्छा, तो ये इंडो आर्यन टेक्स्ट है, ठीक बात है, इंडो आर्यन टेक्स्ट है, अच्छी बात है, लेकिन आया कहां से? अच्छा, जो ऋषि मुनि थे। अब इसको लेकर दो विचार है, फ्रॉम वेयर डिड द वेदास ओरिजिनेट? सो देयर आर टू व्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। फर्स्ट व्यू पॉइंट इज दैट the rishis or the ascetics who meditated deep in the forest, so they through their intuition self realized the ultimate principle of reality. बात को ध्यान से सुनिए। There are two viewpoints with respect to the origin of Vedas. First viewpoint is that these are the outcome of the self reflection and self introspection of the ascetics and the sages. Sage मतलब जो ऋषि थे, and the sages who in deep forest
continuously meditated upon the questions of human life and existence. तो उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही वेद का ज्ञान है. Is it clear? So what is the source of Vedas? It is the intuition and self contemplation or meditation by the Vedic sages. बात आ रही है समझ में? दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि while these sages meditated in the deep forest, so they got this knowledge directly from God. क्योंकि ये मानव जनित नहीं हो सकता ऐसा माना जाता है, इसीलिए ये ज्ञान उनको कहां से आया, उनके अंदर भी ये ज्ञान कहां से आया, ये कंटेम्पलेशन से उनको ये सभी जो जीवन के जो प्रकृति के सिद्धांत हैं वो कहां से पता चले, तो कहा जाता है इट इज प्रोवाइडेड बाय गॉड डायरेक्टली. इस्लाम में उसी प्रकार का विचार है जिसको इल्हाम कहा जाता है. आपने शब्द सुना है इल्हाम? इल्हाम का अर्थ होता है जो कि divinely provided हो, which has been provided directly by the divine. So the entire Quranic idea that has been passed on according to Islam directly by God or Allah. Is it clear? So such kind of ideas you find in multiple religions. Direct transfer of knowledge by God or the spiritual entity to the seeker. To the seeker. भारत में भी आपको कई ऐसे दर्शन है जिसमें मानना है कि बिना ईश्वर की इच्छा के मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती. जैसे वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग. वल्लभाचार्य भी आपको पढ़ना है. कहां जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का? चंपारण में, राजिम के पास है ना? आप गए हैं कभी? गए? अच्छा, गुड. तो वल्लभाचार्य ही वाज द प्रोपाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग. और पुष्टि मार्ग में ये विचार है कि आप कितनी भी भक्ति कर लें, कितना ज्ञान कर लें, कर्म कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती. बात आ रही समझ में? सो दिस टाइप ऑफ आइडियाज दे आर placed in multiple ways. So the basic thing is that the viewpoint of the origin of Vedas is twofold. First, they are the outcome of self-reflection of the Vedic sages or seers, and the second thing, they have been directly provided by the divine, directly supplied by the or triggered or inspired by the divine. So they have these two sources, but ultimately you can source the Vedas, the origin of Vedas, to the spiritual divine. अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी प्रोड्यूस हुआ तो उसके पीछे वो डिवाइन इंस्पिरेशन होगी. सो अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ वेदास दे आर पॉइंटेड आउट टू द डिवाइन सोर्स. तो उसका ह्यूमन सोर्स नहीं माना जाता. सो देयर इज नो ह्यूमन सोर्स और ओरिजिन ऑफ वेदास. दैट इज व्हाई वेदास आर कॉल्ड अपौरुषे. वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषे बोलते हैं. मतलब किसी पुरुष के द्वारा यानी किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना या इसका ज्ञान नहीं आया है, ये सीधा उस आध्यात्मिक शक्ति से आया है. इज इट क्लियर? सो वेदास आर कंसीडर्ड टू बी ऑथरलेस. नो ऑथर ऑफ वेदास, डिवाइनली ऑर्डेन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू इनसाइट ऑफ द सीयर्स एंड सेजेस. इज इट क्लियर? सो वेदास आर नॉट द वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल, नॉट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट स्प्रेड ओवर number of centuries. And the knowledge in Vedas, they are also provided by not one individual but number of thinkers and sages and seers. Is it clear? So this is about the basic idea of Vedas. Now tell me one thing, that what are various parts of Vedas? What are various parts of Vedas? What are various parts of Vedas? Tell me. कितने भाग हैं वेद के? 4 हैं. कौन कौन से हैं? ये तो प्रकार हैं वेद के ना. वेद 4 प्रकार के हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ये 4 प्रकार के वेद हैं. वेद के भाग कितने हैं? बोलिए. स्मृति और श्रुति तो 2 प्रकार के आपको शास्त्र हो गए जो आप कह रहे हैं. एज आई टोल्ड यू दैट द नॉलेज ऑफ वेदास दे वर ट्रांसफर्ड बाय ओरल रिसाइटल्स, है ना, ओरल रिसाइटेशन. तो उसको सुनकर वो ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर दूसरे को ट्रांसफर. तो दिस इज द श्रुति ट्रेडिशन. इसीलिए वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ बोलते हैं. श्रुति जो आपने कहा, श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना, हियर, है ना. तो ओरल ट्रेडिशन से पास हो रहा है. इसीलिए भारतीय जो आपको शास्त्र हैं वो दे आर क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स, श्रुति एंड स्मृति. तो श्रुति जो है दैट इज पास्ड ऑन थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, लिसनिंग, हियरिंग, एंड अनदर वन दैट इज स्मृति, जैसे कि आपको पुराण हो गए जिसको कि लिखा हुआ है. सो दे आर in written format. Vedas originally they were not written, later on they were produced in the form of texts. Is it clear? तो ये आपको श्रुति और स्मृति का अंतर है. श्रुति का अर्थ वो हुआ जो आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और स्मृति का अर्थ हुआ जो लिखकर आप मेमोराइज करते हैं.
that is Smriti, as in Puran, Mahakavya, Mahabharata, Ramayana, all these things. Is it clear? Shruti and Smriti. But what are various divisions of Vedas? Various divisions. So there are 4 basic division of Vedas. The first one is Samhita. फर्स्ट वन इज संहिता, पीछे से दिख रहा है इस कलर में सभी को, संहिता. द सेकेंड वन इज ब्राह्मण, द सेकेंड वन इज ब्राह्मण, द सेकेंड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज अरण्यक, थर्ड पार्ट इज अरण्यक, एंड द फोर्थ पार्ट इज उपनिषद, फोर्थ पार्ट इज उपनिषद. सो देयर आर 4 parts of Vedas. First part is Samhita, second is Brahman, third is Aranyak, and fourth is Upanishad. Now Upanishad is the final or the concluding part of Vedas. That is why it is called Vedant. इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं. तो उपनिषद और वेदांत एक ही चीज है. उपनिषद और वेदांत जो है वो एक ही चीज है. वेदांत का मतलब वेदों का जो अंतिम भाग है, अंतिम हिस्सा है. द कंक्लूडिंग द फाइनल पार्ट ऑफ वेदास इज कॉल्ड वेदांत. इज इट क्लियर? है ना. तो वेद के 4 भाग हैं. इसमें क्या क्या है अभी हम लोग समझेंगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू संहिता, देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ संहिताज, जो आप कह रहे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना. सो दीज आर 4 टाइप ऑफ संहिताज. ऋग्वेद, then you have the Samved, then you have the Atharva and the Yajurved. Samved, Yajurved and Atharvaved. 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 So this is the structure of Vedas in Indian philosophy. 4 parts, and then under Samhita you have 4 type of Samhitas, that is Rig, Sam, Yajur and Atharva. So which is the oldest Vedic scripture or text? Rig Veda is the oldest. Which is the newest? Atharva Veda. Okay, so Atharva Veda, Rig Veda is the oldest one, and Atharva Veda is the newest one, the most latest one, the latest edition. As I told you, it was added around 1200 BC to the Vedic text. तो कोई एक समय में विकसित नहीं हुआ. Now coming to the point that what are the contents of these 4 divisions of Vedas, Samhita, Brahman, Aranyak and Upanishad. तो वेद में मूल रूप से क्या है, कोई आइडिया है आप लोग को? ऋग्वेद में क्या है? प्रेयर्स टू गॉड. वेरी गुड. ऋग्वेद में क्या है? हिम्स, मंत्रास, प्रेयर्स, स्तोत्र, जो यज्ञ अनुष्ठान करने की विधि है वो सभी आपको ऋग्वेद में दी गई है. प्रेयर्स टू गॉड. किस तरीके के गॉड, कौन से गॉड थे उस समय? कौन से गॉड थे उस समय? वेदों में कितने प्रकार के आपको देवता बताए गए हैं? कितने प्रकार के? कई सारे हैं, है ना, कई सारे हैं. मल्टीपल गॉड्स आर देयर. द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, द वेरियस फिजिकल फोर्सेस ऑफ नेचर, फॉर एग्जांपल द सन, फॉर एग्जांपल द मून, फॉर एग्जांपल द विंड, वाटर, फॉरेस्ट. सो ऑल ऑफ दीज, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ रियलिटी, दे वेयर गिवन द सिंबल ऑफ दैट डिवाइन पावर. उसी डिवाइन पावर का सबको स्वरूप या प्रतीक मानते थे. तो ये सब अलग अलग देवता थे. इनमें से सबसे सुपीरियर ऋग्वेद में किस देवता को माना जाता था? इंद्र को माना जाता था, है ना. तो बहुदेववाद की व्यवस्था थी. उसे हिंदी में बोलते बहुदेववाद. बहुदेववाद मतलब मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल गॉड्स. सो chanting prayers for such multiple entities to please them, in order to praise them, to offer salutations to them, उसका पर्पस क्या है? so that they can bring us wealth and prosperity, ताकि वो खुश रहें और हमें मतलब समृद्धि से और शांति से हम अपना जीवन जी सकें. why? the Vedic people, they consider that our very life is dependent upon these physical forces. वर्षा होगी तो ठीक से खेती होगी, खेती होगी तो उससे ठीक से प्रॉस्पेरिटी होगी सोसाइटी की. अग्नि, so they consider that if fire is controlled, if fire is within its limit, so it is helpful. If it becomes uncontrolled, if it becomes uncontrolled, then it can wreak havoc. It will wreak havoc to the settlement and it will destroy life and property. तो अग्नि को खुश रखना है. कैसे खुश रखना है भाई? कैसे खुश रखेंगे किसी को? ऑफरिंग्स करके, है ना. तो ये प्रिमिटिव आइडियाज थे. इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ट्रांजिशन है. आपको यहाँ पर प्रिमिटिव आपको आइडियाज देखने को मिलेंगे लाइफ और एग्जिस्टेंस को लेके. फिर वो धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा, सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, और उपनिषद में फाइनली आपको प्योर फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, प्योर फिलोसॉफिकल थिंकिंग. तो संहिता में आपको क्या देखने को मिलता है? दे हैव द कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, द कलेक्शन ऑफ रिचुअल्स,
sell it in order to praise God, in order to make the God or the divine forces happy. Is it clear? बात आ रही है समझ में? संहिता में क्या है? वो मंत्रों का समूह है, मंत्रों का संकलन है। जो अनुष्ठान होते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, उनकी विधि बताई गई है उसमें, विभिन्न देवी देवताओं के उसमें स्तुति के उनके स्रोत बताए गए। इज इट क्लियर? तो वही संहिता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्राह्मण पर। ब्राह्मण का क्या अर्थ है? अब संहिता में जो आपको मंत्र या स्रोत दिए गए हैं, जो प्रेयर्स दिए गए हैं, जो रिचुअल्स दिए गए हैं, उसको ब्राह्मणों को समझने के लिए उसकी व्याख्या की गई है। इसीलिए इस भाग का नाम ब्राह्मण है, ताकि उसको जो पुरोहित है, जो वैदिक अनुष्ठान कराने वाले हैं, पहले तो खुद समझें, उसके बाद औरों को समझाएं। तो इसीलिए द इलैबोरेशन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिम्स, द प्रेयर्स, द रिचुअल्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर संहिता, दे आर इलैबोरेटेड इन ब्राह्मण। इज इट क्लियर? So that the priest who is presiding over the Vedic rituals must know in detail about the all the rituals. आप देखते हैं कोई भी वैदिक अनुष्ठान होता है तो बहुत elaborate rituals होते हैं उसमें, कब क्या मंत्र पढ़ना है, कब क्या ऑफर करना है. So there is very elaborate rituals in the Vedic processes. So the priest must himself know about those type of processes and also explain it to the common people. So that's why it is called Brahman. Is it clear? तो उसमें क्या है? इलेबोरेशन ऑफ द रिचुअल्स एंड द हिम्स विच आर प्रोवाइडेड इन द संहिता. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा. नाउ देयर इज अ प्रोग्रेशन इन संहिता. यू हैव ओनली रिचुअल्स, यू हैव ओनली रिचुअल्स, ओनली हिम्स, ओनली प्रेयर्स, ओनली प्रोसेसेस. तो शुद्ध कर्म कांड है संहिता में. क्या है? प्योर कर्म कांड. इट इज कंप्लीटली रिचुअलिस्टिक. इट इज कंप्लीटली ritualistic. Now you when come to Brahman, so there is explanation, there is explanation, then comes the small component of ideas. जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आप उस आइडियाज को फर्दर इलेबोरेट करते हैं ना, उसको विस्तार से बताते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप, इट इन्वॉल्व्स सम एलिमेंट ऑफ आइडिएशन और थिंकिंग. आप एक्सप्लेन करेंगे तो थिंकिंग करेंगे ना किसी चीज के विषय में. So there is the slight component, but still it is the ritualistic aspect, the elaboration of the ritualistic aspect of Vedas, that is कर्म कांड. इसीलिए ब्राह्मण और संहिता दोनों को क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? कर्म कांड. So the part of Vedas which are related to the rituals, which are related to the rituals and Vedic performances, that is why these two are called कर्म कांड. Is it clear? सभी को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सीधे आपसे, कर्मकांड क्या है ना. अच्छा. नाउ एज यू अंडरस्टूड द ब्राह्मण, नाउ इन अरण्यक. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ वेदास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरण्य? जंगल, फॉरेस्ट, वन. नाउ दोज seers who were living in dense forests, isolated themselves to inquire about the ultimate reality of life, when they elaborated over the Vedic rituals and their explanations, the outcome of such meditation and contemplation was the knowledge of Aranyak. तो अरण्यक में जो आपको संहिता में, जो ब्राह्मण में वैदिक विचार दिए गए हैं, उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर चिंतन. इसका प्रभाव क्या है, ये हमारे लिए अच्छा कैसे है, इसको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या फल होंगे, क्या पुण्य होगा, क्या इससे पाप मिलेगा, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इन विषयों पर अब चिंतन अरण्यक में शुरू हो गया. So Aranyak becomes the third part of Vedas, where there is reasoning and thinking about the content of Samhita and Brahman. Where? In deep forest. In deep forest. क्यों? क्योंकि वैसा कंटेम्पलेशन करने के लिए आपको अपने आप को आइसोलेट होके मेडिटेट करना पड़ेगा, और एक दो दिन में तो बात बनेगी नहीं. So over a period of time, so you have to do prolonged meditation and contemplation over the ideas that why we should worship the forces of nature, what would be its impact upon us if we did not offer salutation to sun or Indra, what could be its bad effects. तो जब इस प्रकार का चिंतन होने लगा, so there was the transition from ritualism to thinking. Get the point? There is the transition from Brahman to Aranyak, transition from the ritualistic component to thinking component. Okay? Now Aranyak में क्या है समझ गए? So it is further explanation of reasoning about the Vedic rituals and their elaboration which is provided in Samhita and Brahman. Is it clear? Now the last part, that is Upanishad.
So when you contemplate on these things like why shall we worship a particular physical force, और हमें क्यों करना चाहिए, उसका क्या पुण्य मिलता है, ये सभी चीजें, then you went on to the next, then you go on to the next thing. If there are multiple forces of nature and they are represented as various aspects of, you know, God, and these physical forces of nature, they control our life, they play a role in the nature. Who controls them? Is it not the next logical question? अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये फिजिकल फोर्सेस है, ये हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, इनका नेचर में अपना स्थान है, सन है, मून है, सब चीज है, स्टार्स हैं, उनकी अपनी अपने अपने रोल हैं इस पूरे नेचर में. सो नाउ हु कंट्रोल्स देम? फ्रॉम वेयर डिड दे कम? हाउ इज देयर रोल असाइंड? हाउ इज देयर प्लेस असाइंड इन दिस नेचर? Is it not the next logical question? Then starts the search for the ultimate answer to the various realities. The ultimate answer to various realities. क्या हम ये मान लें कि भाई हमारे जीवन में, मान लीजिए कि लेट्स से दैट सन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, इट ड्राइव्स द एंटायर सिस्टम. तो वैदिक लोगों को भी ये बात पता थी कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती, सूर्य के हिसाब से हमारा जो डेली रूटीन है वो डिटरमाइन होता है. अब तो मोबाइल के हिसाब से होता है. सो मोबाइल इज द न्यू सन. The point is that they consider them important, but who has fixed these roles for these physical entities? Is it not the next question? उनका ये स्वभाव कहाँ से आया? The fire, the tendency of fire is to burn. Did fire acquire the tendency itself? Are you getting the question? Did fire acquire the tendency to burn something? Did water acquire the tendency to, from where did it acquire the tendency to put off fire or to cool down something? पानी का स्वभाव होता है ना ठंडक पहुंचाना, कहां से ये स्वभाव आया उसका? किसने दिया? जल को किसने बनाया? पानी, वायु को किसने बनाया? अग्नि को किसने बनाया? और नेचर में उनके रोल्स को डिफाइन और असाइन किसने किया? इज इट नॉट द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन? सो नाउ दिस इज प्योर फिलोसॉफिकल थिंकिंग. इज देयर एनी कर्म कांड इन दिस? Is there any ritual, any prayer in this? No. So from Aranyak, in the next step, you get into the pure logical contemplation about the ultimate questions of life and reality. What is the ultimate reality? If there are multiple forces of nature, which is the ultimate force of existence? If sun, moon, rain, Indra, Vayu, Agni, all these things are so much powerful, which is the ultimately powerful being? If these lead to creation, if sun leads to creation of life on earth, let's say, who is the creator of sun? From where all this entire reality has emerged? Now this is pure philosophy. So these two aspects of philosophy, Vedas, they are called Gyan Kand, Karma Kand and Gyan Kand. Are you getting the point? तो संहिता और ब्राह्मण को क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं, as they focus upon the ritualistic aspect of contemplation, thinking. But when you transition from the Brahman to Aranyak, that is the shift from rituals to thinking, rituals to reasoning, and finally in Upanishad you find pure reasoning, no ritualism. That is why it is called the ज्ञान कांड. इज इट क्लियर एवरीवन? तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. अब ये चीज आप समझ रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से? अच्छा, सो उपनिषद, फाइनली हियर यू सी प्योर रिचुअलिज्म टू हियर प्योर फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन, एंड दिस इज द फाइनल पार्ट. और उपनिषद के ज्ञान के बाद व्यक्ति को क्या होता है? लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति. व्हेन यू कंटेम्पलेट अपॉन द अल्टीमेट रियलिटी, think upon it, you self realize the ultimate principle. There is no other way. We will come to know when we will discuss Brahma. So when you self realize the ultimate principle, so what happens? Your all doubts are removed. When your all doubts are removed, so you become one with the ultimate reality itself. So that is the last stage of Vedic philosophy. What is the last stage of Vedic philosophy? Upanishadic learning, Upanishadic knowledge. And when that knowledge dawns upon an individual by the guidance of some master or teacher or guru, so it leads to liberation of the individual. काम खत्म. ठीक है, तो व्यक्ति फिर मोक्ष प्राप्ति हो गई. उसके बाद वो मस्ती से आईपीएल देखता है. बात आ गई समझ में? ओके, सो दिस इज वेद, the background of Vedas. Before we get into Brahma, before we get into Atma and Rit, we need to understand the basic background of this thing. Is it clear? वेद क्या है? सभी को समझ में आया? Now
we talk about Upanishad. So we will talk about, हाँ अच्छा वो नोटेशंस है, वो फिलोसफी के नोटेशंस हैं। हाँ मतलब ज्ञ जो है, हिंदी की जो वर्ण मात्रा है ज्ञ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो मात्रा है ये या है, या की जो मात्रा होती है या की, तो ज्ञान है ना, तो ग या और नौ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे आपको फिलॉसफी में जो संस्कृत के शब्द हैं उसको इंग्लिश में लिखने के नोटेशंस होते हैं, आपको उसमें नहीं जाना, एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जैसे वो मैंने लिख दिया, ज्ञान हम जैसे लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं ज्ञान कांड। इधर ध्यान दीजिए सभी, इधर क्या इतनी प्रसन्नता वाली बात है भाई, इतनी खुशी है एकदम से। ये क्या है, यह है, ये क्या है, यह है, तो ये क्या हो गया ज्ञान। ये आ की मात्रा है, ये क्या है, आ की मात्रा, तो ज्ञान। अच्छा ये फिर आ की मात्रा, तो कांड, और ये औ की मात्रा है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ज्ञान कांड भी लिख सकते हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल अगर यूपीएससी में होता तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है ना, तो चूंकि ये आपका जीएस का पेपर है तो आप लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दोज नोटेशंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस द उपनिषद। व्हाट इज द आइडिया ऑफ उपनिषद? उपनिषद, उपनिषद। अच्छा इसमें एक बात और समझना जरूरी है कि ये जो ट्रांजिशन है ये और कई फैक्टर्स के कारण भी हुआ था, है ना। सो दिस ट्रांजिशन वाज आल्सो ड्यू टू मल्टीपल अदर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल the Vedic rituals they were so elaborate, number of offerings had to be made, offerings to priest as well, you know, the number of offerings had to be made, that's why the Vedic rituals and performances, ध्यान से सभी सुनिए, the Vedic rituals and performances they could be performed only by the rich people। क्या गरीब आदमी के लिए संभव है? उतना कहाँ से घी लाएगा, लकड़ी लाएगा, यज्ञ हवन करेगा, है ना। एलपीजी नहीं है तो लकड़ी खाना बना खा रहा आदमी तो उतना उसके पास साधन नहीं था। तो एक फिर ये भी तरीका सोचा गया कि भाई ये तो केवल वेल्दी लोगों के लिए नेचर से जुड़ने या गॉड से जुड़ने का माध्यम है, कर्मकांड, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो व्यक्ति कैसे और उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ सकता है, तो उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का रास्ता बताया गया कि आप आप रिफ्लेक्ट करें अल्टीमेट रियलिटी के नेचर, अपने नेचर पर, तो आप अल्टीमेट ट्रूथ को जान सकते हैं। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि क्या वृद्ध व्यक्ति उतनी फास्ट, उतने जो रिचुअल्स होते हैं, जो तप होती है जो वैदिक अनुष्ठानों में, उसको कर सकता है एक वृद्ध व्यक्ति? क्या उतना उपवास सह सकता है? नहीं कर सकता। तो जो वृद्ध व्यक्ति है, जो आपको ओल्ड सीयर्स हैं, सो दे प्रेफर टू कंटेम्पलेट मोर, सेल्फ रिफ्लेक्ट मोर रेदर देन गेटिंग एंगेज्ड इन रिचुअल्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस। अभी भी आप देखेंगे यज्ञ अनुष्ठान ये सब ज्यादा आपको जो युवा पुरोहित होते हैं वो लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना लगातार बोल पाना, बैठ पाना बुजुर्ग व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जो बहुत वृद्ध हो गया, क्या उसके लिए संभव है कि घंटों घंटों कई दिन तक बैठ के यज्ञ करा रहा है, हवन करा रहा है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो ये एक फैक्टर था, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, अधिकांश लोग उस समय, या मतलब पॉवर्टी हैज बीन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, उतने साधन नहीं थे, तो उनके लिए और दूसरे साधन विकसित किए गए कि भाई तुम दूसरे तरीके से पहुंच जाओ। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में आपको कर्मकांड, ज्ञान, भक्ति, अलग अलग रास्ते उस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने के बताए गए हैं। इज इट क्लियर? सो देयर वर वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल। नाउ कमिंग टू उपनिषद, यस, एनी डाउट? हाँ, नहीं नहीं, उपनिषद अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वो अंतिम चर्चा है। पहले हम, अच्छा इस चीज में थोड़ा सा एक डिस्कशन और आप समझ लीजिए, सो इट विल ब्रिंग फर्दर क्लैरिटी। सी इन संहिता यू हैव नंबर ऑफ गॉड्स, इन ऋग्वेद यू हैव नंबर ऑफ गॉड्स। सामवेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में आपको गॉड्स के सैल्यूटेशन है, प्रेज है। सामवेद में क्या है? चैंट्स, यू नो, जो वैदिक मंत्र हैं, हिम्स हैं, उनको चैंट करने के तरीके, किस समय कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल करना है, किस मात्रा का इस्तेमाल करना है, किस छंद में उसको गाना है, मीटर क्या होना चाहिए। सो इट इज अबाउट रिसाइटेशन ऑफ द Vedic mantras. Why? It was to be transferred through oral tradition, so you must have a pattern, a standard pattern to recite it, and that pattern, the musical pattern or the way you sing it or recite it, that is provided in सामवेद। तो सामवेद में अपने आप को 75 उसके सूत्र हैं, बाकी उसमें ऋग्वैदिक सूत्र हैं,
है ना, सामवेद हो गया, इट इज रिलेटेड टू रिसाइटेशन। नाउ द यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है आपको, यज्ञों में जो अनुष्ठान है, यज्ञ में अनुष्ठान, ऑफरिंग्स, बलि, उसको बताया गया है कि यज्ञ कैसे करने, किस विधि से करने। ऋग्वेद में मंत्र है, सामवेद में मंत्र पढ़ने के तरीके हैं, यजुर्वेद में यज्ञ जो करेंगे, मंत्र के माध्यम से जो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की विधि बताई गई। क्या बताया गया है, यज्ञ की विधि, द प्रोसेस, द मेथड्स, द स्टेप्स टू बी फॉलोड, द इलैबोरेट स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग सम वैदिक रिचुअल। और यज्ञ वो किसमें है, यजुर्वेद में है, यज्ञ से संबंधित है। एंड फाइनली द अथर्ववेद, अथर्ववेद ट्रीटमेंट्स एंड जादू टोना, अच्छा ये सभी बातें हैं, मैजिक ऑल दीज थिंग्स यू नो। एंड ऑल्सो अच्छा ये चीजें क्यों आई फिर अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, मैंने आपको ये बताया। व्हाई इट वाज एडेड लेटर, एज the understanding was that there are not only the positive aspects of physical forces. If physical forces, they are benign, they are benevolent, they help in human life, so at times there are forces in nature, so it was assumed that there are forces of nature which bring harm to people, which bring harm to our life, है ना। तो अगर सुर हैं तो असुर भी हैं, अगर पॉजिटिव फोर्सेस हैं तो निगेटिव फोर्सेस भी हैं नेचर में। तो वैसे निगेटिव फोर्सेस को, जो असुर शक्ति है, उसको फिर फर्दर खुश करने, शांत करने के लिए जो मंत्र और जो रिचुअल्स बताए गए वो अथर्ववेद में शामिल है। उसमें आपको जादू टोना करके कैसे उन शक्तियों को अपने नियंत्रण में लाके फिर उनका जो हार्म है उसको मिनिमाइज करना है, उनको संतुष्ट करना है, ये सभी बातें उसमें बताई गई हैं, वो सूत्र बताए गए हैं, वो मंत्र बताए गए। इज इट क्लियर? सो अर्लियर देयर वाज द आइडिया ऑफ द प्रीस्ट्स हु वर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, लेकिन अब जो वेद की ये प्रकृति थी, क्या ये आम व्यक्ति के जीवन को संतुष्ट कर पाती? क्या हर कोई वैदिक रिचुअल कर पाता? नहीं कर पाता। अब उसके जीवन में जो कष्ट है उसका निदान कैसे हो? फिर वो किस चीज से परेशान है? वो बीमारी से परेशान है, वो किसी रोग से परेशान है, किसी दुख से परेशान है, कोई पीड़ा है, तो उसको द प्रिमिटिव आइडिया वाज दैट सम नेगेटिव फोर्स ऑफ नेचर इज ब्रिंगिंग ऑल दीज सफरिंग्स टू यू। आज भी कई ऐसे लोग हैं, अधिकांश हम में से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के विचारों को मानते हैं, सुपरस्टिशंस। बड़े बड़े लोग हैं, बाबा के पास जाते भूत झड़वाने, सांप काट लिया उसको ले जाते ओझा के पास झड़वाने के लिए, उतने देर में आदमी का जीवन चला जाता है। सो दीज आइडियाज दैट दीज नेगेटिव फोर्सेस दे आल्सो कंट्रोल ओवर आवर लाइफ, हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू प्लीज देम, हाउ टू कीप देम पेसिफाइड। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो मंत्र वगैरह थे किसमें दिए गए? अथर्ववेद में। अच्छा, उसके अलावा जो आपको ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ है उसमें क्या होता है, जो मेजर इवेंट्स हैं, किसी जन्म हो गया, विवाह हो गया, उपनयन संस्कार, है ना, ये सभी तो कई संस्कार बताए गए हैं। अंतिम संस्कार है व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत, आफ्टर द डेथ। सो मंत्रास टू बी रिसाइटेड ऑन वेरियस ओकेजन्स ऑफ संस्कार। जन्म के समय कौन सा मंत्र, है ना, विवाह के समय। तो अभी भी जो आपको वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह होता है, जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो अथर्ववेद से पढ़े जाते हैं। अंतिम संस्कार के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, बच्चे के जन्म के समय, तो उन सभी संस्कारों के जो मंत्र हैं विच इंपैक्ट्स इन्फ्लुएंसेस दी lives of common people, that is provided in the Atharvaved. So Atharvaved, it is more for the commoners, for the ordinary people, and the earlier three they are more for the priests, the priests. तो ये भी उसमें आप एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या हर व्यक्ति को वैदिक मंत्र का पाठ करना वैदिक तरीके से आता है? नहीं आता। प्रिस्टली क्लास में भी पर्टिकुलर training is provided for the students to recite the Vedas in a particular way. Okay, so the earlier three they were more for the priestly class, the last one it was more for the ordinary people. Is it clear? समझ में आ गया? Now see, हाँ बोलिए। हाँ, पहले कर्म कांड कैसा है? पहले तो ज्ञान कांड, मतलब पहले आप सोचोगे उसके बाद आप कुछ करोगे। पहले कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, वो कैसे आया? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमारे मान लीजिए कि जब सिविलाइजेशन थोड़ा सेटल होना शुरू हुआ तो हमने एकाएक सोच लिया अल्टीमेट रियलिटी के बारे में। सबसे पहले हमारा एक्सपीरियंस क्या था? बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, धूप है, आग लगी हुई है कहीं पर। सो एंड दीज आर पावरफुल फोर्सेस, दे आर पावरफुल फोर्सेस। सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस? आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज विथ रिस्पेक्ट टू दीज फोर्सेस ऑफ नेचर। तो हमने इनको मान लिया कि तो बहुत शक्तिशाली है, हमारा जीवन इनके अधीन है, वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। हाँ, सोच रहे हैं, पर वो जो एक्सपीरियंस है हमारा उसके बेसिस पर हम प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान कांड का अर्थ है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू इनसाइटफुल थिंकिंग, इट इज नॉट मियर प्लेन थिंकिंग,
It is not ordinary thinking. Why it is called Gyan Kand? It is profound, insightful thinking into the ultimate questions of life and reality. Are you getting the point? तो आप जो कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ सोचा होगा कि ये प्रकृति के बल है और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो थॉट, वेरी गुड, पर क्या ये ज्ञान के प्रोफाउंडनेस से रिलेटेड है? इज इट मच इंसाइटफुल? इज इट मच इन डेप्थ? डज इट डील विद द फाइनल अल्टीमेट क्वेश्चंस? नहीं, it is related to our primitive experiences when we interact with nature. Okay, so that is why it is karma kand. We developed rituals and practices with respect to those ideas. We did not form a comprehensive ideas about the final solutions of our existence. इसीलिए ज्ञान कांड बाद में आता है. क्यों? ज्ञान कांड में आपको प्योर थिंकिंग है, प्योर रीजनिंग है, उसमें कोई रिचुअलिज्म नहीं है. पहले का पार्ट कर्म कांड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रिचुअलिज्म है. अब उसमें थिंकिंग ज्यादा है या रिचुअलिज्म ज्यादा है? पहले वाले में संहिता में मंत्र हैं जिससे देवता खुश होंगे, उसमें क्या इलेबोरेट थिंकिंग है? नहीं है, उसमें आपको रिचुअल्स हैं, इसीलिए कर्म कांड है. यू हैव टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस. व्हेन यू कम टू अरण्यक एंड उपनिषद, क्या उपनिषद में कोई आपको रीति रिवाज बताया गया, कोई विधि बताई गई, कोई यज्ञ अनुष्ठान बताया गया? नो. सो इट डील्स विथ प्योर कंटेम्पलेटिव थिंकिंग, दैट्स व्हाई इट इज ज्ञान कांड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? पहले हमने उनको खुश करने के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं बनाई, यज्ञ के रीति रिवाज बनाए, उसके बाद हमने उसको विस्तार दिया, फिर हमने सोचा कि भाई इससे क्या हमारा सभी उत्तर मिल जाता? ये तो कई सारे देवी देवता है. नाउ आई विल कम टू दैट. तो इसमें तो कई सारे देवी देवता हैं. व्हाट इज इंटर रिलेशन बिटवीन देम, हु कंट्रोल्स देम? देन वी स्टार्टेड टू आस्क लार्जर क्वेश्चंस which went beyond our immediate experience. So thus we transitioned into then Aranyaka and finally Upanishad. So that's how it is stage by stage. Are you getting the point? Clear है? हाँ हाँ जैसे कोई भी चीज काम कर रही है, हाँ पंखा भी चल रहा है, इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल है. बिल्कुल. तो वो प्रिंसिपल है, तभी वो चीज चल रही है. बिल्कुल. कर्मकांड चल रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल. हाँ, आइडियाज हैं, बिल्कुल हैं आइडियाज, पर उसमें डोमिनेटिंग क्या है? उस टेक्स्ट में जो डोमिनेटिव थीम है वो आपको आइडियाज हैं या परफॉर्मेंसेस हैं? उसमें आइडियाज डोमिनेट कर रहे हैं या परफॉर्मेंसेस डोमिनेट? परफॉर्मेंसेस, इसीलिए कर्मकांड है. जब हम बाद वाले हिस्से पर आते हैं तो उसमें आइडियाज डोमिनेट कर रहा है या रिचुअल्स डोमिनेट कर रहे हैं? बाद वाले में अरण्यक और उपनिषद में आइडियाज डोमिनेट कर रहे हैं या रिचुअल्स डोमिनेट कर रहे हैं? आइडियाज. दैट्स व्हाई दे आर ज्ञान कांड, है ना. तो इस बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ थिंकिंग है, लेकिन क्या सभी अल्टीमेट रियलिटी से रिलेटेड? क्या सभी फाइनल क्वेश्चन से रिलेटेड? नहीं. तो ये दोनों आपको लार्जर रियलिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, उसका आंसर देने का लॉजिकल तरीके से प्रयास करते हैं, इसीलिए हम उन्हें ज्ञान कांड कहते हैं. हाँ, क्योंकि वो सबसे प्रिमिटिव आइडियाज है. सबसे पहले हमने क्या देखा भाई? ये देखा कि आग जलाती है ना. सो द फायर कैन बर्न, सो वी मस्ट देन वी थॉट दैट दे आर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, वी कंसीडर देम टू हैविंग डिवाइन पावर, सो वी वांटेड टू प्लीज देम. सबसे बेसिक चीज है कि भाई इनको खुश रखो, इंद्र खुश रहेंगे तो वर्षा समय पे होगी. हाँ, बिल्कुल थिंकिंग से आया कि कुछ तो है जो हमारी मतलब कि लाइफ को कंट्रोल कर रहा है. हाँ. अनेकांतवाद. हाँ, आई विल कम टू दैट. हाँ हाँ, अब ये जो आइडिया है डिवाइन पावर का, व्हाट इज दिस डिवाइन पावर? व्हाट इज डिवाइन पावर? विच इज अदर वर्ल्डली, विच वी कैन नॉट सी बट विच कंट्रोल्स अस, है ना, विच डोमिनेट्स अस. सो दीज फोर्सेस ऑफ नेचर, they were considered to be dominating and controlling our life. Means they have, अच्छा उनका सोर्स क्या है? क्या हम जानते हैं सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या वैदिक लोग जानते थे वायु कैसे, means how the wind circulation takes place, how the rain takes place? So they had no idea. So they considered them to be some divine powers, you know, some divine powers. और उनको सिंबल के रूप में वो पूजा करने लगे. ठीक है, तो ये एक प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है एग्जिस्टेंस को लेकर या रिफाइंड रिस्पॉन्स है एग्जिस्टेंस को लेकर? Primitive response. That's why it is the first stage. Now it began to be getting more refined and sophisticated, finally coming to the reasoning and rational thinking about the abstract ideas. Abstract ideas. What is space? What is time? Who created space and time? Is there something which is beyond space and time? Is there something which is beyond birth and death? Which is beyond all these temporal, you know, experiences and realities? When we started to thinking in this larger way, then it gets into Gyan Kand.
Is it clear? So no ritualism, no offerings, no performances, no mantra, nothing. Pure rational critical thinking. That's why we call it Gyan Kand. Is it clear? Acha. Fine. So if you see that in Vedas you have number of gods. अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि वेद में जो ईश्वर की पूजा की जाती थी वो आपको उसका केवल सिंबॉलिक रूप में पूजा की जाती थी, उसका कोई आकार नहीं था. तो आपको वैदिक काल में डू यू फाइंड एनी टेम्पल्स इन द वैदिक पीरियड? डू यू फाइंड एनी आइडल्स इन द वैदिक पीरियड? दैट वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू फिलॉसफी एट ऑल. मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, ये सब हिंदू फिलॉसफी का एसेंशियल कंपोनेंट शुरू से कभी रहा ही नहीं. किस फॉर्म में पूजा करते थे? ऑफरिंग्स, यज्ञ होता था. पूजा का तरीका क्या था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ वर्शिप? ऑफरिंग, यज्ञ. हर चीज के लिए यज्ञ, हर चीज के लिए अनुष्ठान. इंद्र को खुश करना है, उसका अलग यज्ञ. अग्नि को, मतलब सब देवी देवता के अलग अलग अनुष्ठान. बोलिए. So my marriage, it was presided over 2 female scholars, you know. अच्छा, so does the sound have some, you know, gender allergy? Sound का क्या कोई gender allergy है? So people who say so, they want to maintain control over the religious aspects of human life. That is completely irrational. इधर पीछे से ध्यान दीजिए. क्लास में ध्यान की बात करनी है, ध्यान में जाना नहीं है. नो, हाँ एकदम ध्यान दीजिए. ऐसा ना हो कि क्लास से ही मोक्ष मोक्ष प्राप्त करके निकलें, जब बाहर निकलें तो एकदम बाबा बन के निकलें, ऐसा नहीं है. सो एज यू वेर आस्किंग दैट द चैंटिंग ऑफ वैदिक हिम्स, एज यू सेड दैट मेनी और फ्यू दे से दैट इट इज प्रोहिबिटेड फॉर women. Is there any scientific rational logical connection between the sounds and the sex of an individual or the gender of an individual? No. The basic premise is itself flawed. ओके तो वो कहते हैं तो उनको कहने दीजिए. कहने का क्या, कहने के तो लोग ये भी कहते हैं कि धरती गोल नहीं है. अभी भी ऐसे कंस्पिरेसी थियरिस्ट है ना जो मानते हैं धरती गोल नहीं चिपटी है, और जो धरती गोल है इस प्रकार का विचार जो है वो गलत लोगों के द्वारा समाज में फैलाया गया है. सो लेट देम एंजॉय देयर टाइम. ओके, तो इसका कोई साइंटिफिक रैशनल इस प्रकार के आइडियाज का नहीं. इज इट क्लियर? ओके, सो एज वी आर डिस्कसिंग दैट इन वेदास वी हैव नंबर ऑफ गॉड्स. बहुदेववाद बोलते हैं, number of gods, but at the same time we have the tendencies of ultimate reality one god in Vedas also. तो वेद में आपको बहुदेववाद के भी विचार देखने को मिलते हैं और एकेश्वरवाद के भी, मोनोथिस्टिक आइडियाज भी वेद में देखने को मिलते हैं. जैसे now Vedas contemplate that it talks about Prajapati which maintains the entire एग्जिस्टेंस, द ऑपरेशन ऑफ इंटायर एग्जिस्टेंस, जो पालक है पूरी संसार सृष्टि का, प्रजापति. देन यू हैव द यूनिफाइंग टेंडेंसी एज इंद्र एज द सुपीरियर एमंग ऑल द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वेरियस फोर्सेस. इंद्र, प्रजापति की बात करते हैं, वो ब्रह्मा की बात करते हैं. ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स. सो द कंपोनेंट्स और द इंडिकेशंस ऑफ one god is also found in Vedas. Another thing is Rigveda says that ekam sat viprah bahudha vadanti. ऋग्वेद क्या कहता है? एकम सत, द ट्रूथ इज वन. विप्रह मतलब होता है जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान हैं. स्कॉलर्स दे स्पीक अबाउट इट इन वेरियस वेज. विप्रह, बहुधा का मतलब वेरियस वेज, मल्टीपल वेज. वदंती मतलब स्पीक. So ekam sat, the ultimate truth is one, and the scholars, the wise ones, they speak about it in multiple forms. So there are many evidences in Vedas which indicate towards one reality. At the same time, there are many instances, the entire Vedic system that is built upon number of divine forms. तो अब ये दोनों प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. एक तरफ आपको बहुदेववाद है, दूसरी तरफ एकेश्वरवाद है. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स हैं या नहीं है? तो वेद में दोनों का सिंथेसिस देखने को मिलता है. So Indian philosophy, which has its roots in the Vedic system, it has the presence of both the Bahudevvad as well as the Ekeshwarvad. तो इसका जो सिंथेसिस है उसको क्या कहा गया? हेनोथीज्म कहा गया. हेनोथीज्म, एकाधि देववाद कहा गया. क्या कहा गया? एकाधि देववाद. एकाधि देववाद मतलब एक भी और अधिक भी. तो जब आप एक बार में when you are performing any Vedic ritual which is for praising any one particular type of god,
तो उस समय आप उसको प्रमुखता देते हैं। ऐसा नहीं कि यू आर रिजेक्टिंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ गॉड्स। फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनटू सम हनुमान टेम्पल और शिव मंदिर, तो जब आप शिव मंदिर में पूजा करते हैं ऐसा थोड़ी है कि यू आर डिनाइंग अदर गॉड्स लाइक राम और कृष्ण और दुर्गा। यू आर नॉट डिनाइंग or rejecting them, but at that point of time your focus of devotion is on that particular deity, considering them the center of your devotion. Likewise in Vedic performances and rituals, when one god is worshipped या उनके लिए अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो उस समय के लिए उसको प्रमुखता दी जाती थी, और जो दूसरे देवी देवता थे उस समय के लिए उनको साइडलाइन किया जाता था. सो दिस आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग दी monotheistic and multiple god, they both converge into the philosophical position of henotheism, which is a characteristic of the Vedic philosophy. henotheism, एक भी और अनेक भी. बात आ रही है समझ में? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है, पर इंटीग्रेशन कैसे है? प्रायोरिटाइजिंग और फोकसिंग ऑन वन गॉड एट ए टाइम, मेकिंग इट द सेंटर ऑफ डिवोशन, मीनवाइल for a time being ignoring the other ones, not rejecting their existence, not rejecting their presence, but focusing on one God at one time. तो ये चीजें आपको जो है उसमें देखने को मिलती हैं. Is it clear? So henotheism, what is the position of the number of gods or the structure of theistic attitudes in Vedic philosophy? That is henotheism. Likewise you will find the same kind of structure in the Greek system. ग्रीक सिस्टम भी आपको हेनोथीस्टिक है. वहां पर भी आपको, इधर ध्यान दीजिए, वहां पर भी आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं और मल्टीपल गॉड्स के आइडियाज हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू उपनिषद. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद? हैव यू रेड एनी उपनिषद? डीप थिंकिंग उपनिषद. हैव यू रेड एनी उपनिषद? कोई उपनिषद पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, उपनिषद नहीं पढ़ा है. अच्छा, कितने उपनिषद होते हैं ये बताइए? 108 उपनिषद होते हैं. श्री 108. अच्छा, 108 उपनिषद. ठीक है, तो मुक्ति को उपनिषद में ये बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108. हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? 108. वेयर डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ नंबर ऑफ उपनिषद? दैट इज इन मुक्ति को उपनिषद. मुक्ति को उपनिषद नोट्स में हम सभी लिख लेंगे, समझ लीजिए बात को. तो मुक्ति को उपनिषद में ये बात बताई गई. But the major ones are 10 or 12 in number. 108 में से जो प्रमुख उपनिषद हैं कितने हैं? 10 और 12. Upon which the scholars they had their commentaries. For example शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज, जो बाद में आपको दार्शनिक हुए भारत में, उन्होंने जिन उपनिषदों पर अपने कमेंट्रीज किए, अपनी टीकाएं की, भाष्य लिखे, उसको हम मेजर उपनिषद मानते हैं. So how many are them? 12 इन नंबर, 10 to 12. अगर आप उदाहरण के लिए बात करें, जैसे ईश उपनिषद है, केन है, कट है, प्रश्न है, मुंडक है, मंडुक्य है, तैत्तिरीय है, ऐत्रेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वतर है, और आपको कौपितकी है. ये सभी आपको 12 मेन उपनिषद है. 13वां उसमें जोड़ देंगे मैत्रेयी, तो वो आपको जो प्रारंभिक उपनिषद थे 13 थे. 13 में से 12 को प्रमुख माना गया है. बात आ रही समझ में? कौन कौन सा है? ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य और तैत्तिरीय, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर और कौपितकी, और 13 जो है वो मैत्रेयी है. बात आ रही समझ में? सो दीज आर द मेजर 12 उपनिषद्स आउट ऑफ द 108. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड इन ऑल ऑफ देम देयर इज द प्योर रैशनल थिंकिंग. डोंट डू दैट. प्योर रैशनल थिंकिंग. इज इट क्लियर? अब इसमें उपनिषद का हम अर्थ समझते पहले. सो उपनिषद का संधि विच्छेद करिए. उपनिषद का संधि विच्छेद क्या होगा? उप, नी एंड सद. ओके, उपनी एंड सद. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सद? दिस इज द रूट वर्ड. उपनिषद का रूट वर्ड क्या है? सद है. तो सद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सद? सद का अर्थ क्या होता है? सद का क्या अर्थ होता है? बैठना, टू सिट डाउन. और दूसरा अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय. तो इसका 2 अर्थ होता है. पहला सिट डाउन, बैठ जाना, बैठना, और टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय. अब उप जो है, उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है नियर, नियर बाय, निकट, समीप. उप का क्या अर्थ होता है? समीप. और जो नी है, सद के आगे प्रत्यय लगाया गया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो सद के आगे जो प्रीफिक्स नी लगाया गया है, इस प्रत्यय का क्या अर्थ है? नी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नी? इन अ डिवोटेड मैनर. नी का मतलब होता है डिवोटेड मैनर, डिवोटेड मैनर. तो उपनिषद का अर्थ क्या हो गया?
the sitting down of a disciple or a pupil or a student near the teacher, near the master, near the teacher in a devoted manner, near the teacher or master in a devoted manner in order to destroy all the ignorances and doubts. That is Upanishad. उपनिषद का क्या अर्थ हो गया? गुरु के समीप या निकट शिष्य का समर्पण भाव से, भक्ति भाव से बैठना, किस लिए? अपने सभी अज्ञानता, दुविधा, संशय को उसका नाश करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, यही उपनिषद है. What is Upanishad? It is the sitting down of the student or disciple near the teacher in a devoted manner, in order to remove all the ignorance and doubts of mind. Is it clear? तो ये उपनिषद है. बात आ रही समझ में? Okay. How many of them? 108. But the major one, they are 10 to 12 in number, and the earliest one are 13 in number. और बाकी जो आपको उसमें 95 ऐड किए गए, वो समय में बाद में ऐड किए गए. एंड एज लेट एज द 14th and 15th century AD, तो उपनिषद आपको जो बहुत न्यूएस्ट जो उपनिषद है वो आपको 14वीं 15वीं शताब्दी के भी हो सकते हैं. तो मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है. इज इट क्लियर? व्हाट इज उपनिषद? इट इज द अल्टीमेट और द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास. इसमें क्या है? इसका कंटेंट क्या है उपनिषद का? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने शुरू किया संहिता से, तो संहिता में आपने देखा कि भाई वर्षा का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेन? क्लाउड्स. वर्षा का कारण क्या है? क्लाउड्स. फिर क्लाउड्स, तो आपने उसको एक रूप दे दिया कि भाई एक देव है जो कि वर्षा का कारण है. फाइन. नाउ देयर आर मल्टीपल रीजंस, इन उपनिषद यू थिंक दैट व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन फॉर एवरीथिंग? Now that is pure philosophical thinking. That if there is a reason for everything, what is the ultimate reason which is the source of everything in the world? बात आ रही है समझ में? अगर हर चीज का एक कारण है, हर चीज का कोई ना कोई कारण है, तो फिर अल्टीमेट कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय vapor, vapors are again produced by rivers, rivers are again filled up by rains. Now you get into a circle, you get trapped into it, you have no conclusive answer. So this position in philosophy is called circular fallacy. इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फैलेसी. जिसमें कि मुर्गी कहां से आई? तो अंडा. अंडा कहां से आया? मुर्गी. फंस गए तो कहां से आया? पता नहीं. सो दैट लीड्स टू अ पोजिशन ऑफ स्केप्टिसिज्म. लाइकवाइज इफ यू से दैट इफ समथिंग इज देयर, सो इट हैज अ पर्टिकुलर रीजन. इधर ध्यान दीजिए सभी. This is the particular reason. Now there must be some reason of this region also. There must be some reason which is causing this region also. So that is R2. Likewise R3. Now you go till where? Infinity. So do you have the answer? Is it a satisfactory intellectual position to get trapped into circular fallacy or infinite regress? This position is called infinite regress. बात आई समझ में? जहां पर कि आपके पास कोई उत्तर नहीं, आप अनंत में चले जाते हैं. Are you getting the point? So once you are trapped in circular fallacy or infinite regress, that leads to skepticism in philosophy. उससे क्या पैदा होता है? Skepticism. You don't have answers. Is that a satisfactory intellectual position? क्या उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुश हूं? ठीक है, जो दिक्कत है, मैं डायलेमा से भरा हुआ हूं, मैं डाउट से भरा हुआ हूं, मैं खुश हूं. क्या कोई व्यक्ति ये बात कह सकता है कि मैं दुविधाग्रस्त हूं, बहुत चिंता में हूं, मेरे पास उत्तर नहीं है, जीवन के उत्तर नहीं मिल रहे, लेकिन मैं खुश हूं? क्या ऐसा हो सकता है? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया? नहीं हो सकता है ना. विद द कैप्शन दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. नहीं. तो अब ये आपको साउंड कोहेरेंट फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल नहीं है. इसके लिए फिर आपको वेद और उपनिषद में ब्रह्म का विचार आया. नाउ वी गेट इनटू द आइडिया ऑफ ब्रह्म. आइडिया ऑफ ब्रह्म. सो नाउ व्हाट इज ब्रह्म? यहां तक सभी को क्लियर है? उपनिषद क्या है? नाउ वी गेट इनटू द आइडिया ऑफ ब्रह्म. Idea of Brahm. Idea of Brahm. Fine. Very interesting idea, you know. Very interesting idea. Now you find in Vedas, it has started from multiple gods, number of gods, number of physical forces,
number of physical forces. Okay, many forces in nature, all of them considered to be the symbols of the divine, the supreme. And at that time, as I told you, that no form or shape was assigned, no qualities were assigned to such divine symbols. जैसे यदि अग्नि की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, वायु की, वरुण की पूजा करते थे, तो क्या मूर्ति बनाकर करते थे? क्या वैदिक लोग मूर्ति बनाकर वरुण देव की पूजा करते थे? नहीं। अब तो छठ मैया का भी मंदिर है, छठ माई का भी मंदिर है ना, सूर्य देव का भी मंदिर है। सो ऑल दीज आइडियाज दे आर दी पुराणिक ट्रेडिशंस, वो पौराणिक काल में विकसित हुए, वो वैदिक काल में विकसित नहीं हुए। वेदों का काल अलग था, पुराणों का काल 300-400 एडी के आसपास आपको मिलता है। तो वैदिक काल में ये जो फोर्सेस थे, इनको सिंबल्स के रूप में पूजा करते थे, उनका आवाहन करते थे मन में। जैसे आप अभी भी पूजा करेंगे तो जो पंडित आता है पूजा कराने के लिए, पहले वो संकल्प कराता है कि आप अपने मन में इस ईश्वर का ध्यान कीजिए। कराता है कि नहीं कराता है? तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसको मन में धारण करके पूजा करते थे। सो नो फॉर्म, नो क्वालिटी, नो नेम, ओनली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, when these philosophical ideas they get converted into more ritualistic religion, more the performances and the ritualistic aspect, so these type of forms they got shapes, they got bodies, है ना। अब इनको आकार भी मिलने लगा। अब जैसे इंद्र है, सभी देवों का देव है ना, तो भाई उस प्रकार से उसके रूप स्वरूप, बड़ा मुकुट, इस तरीके से। दुर्गा देवी हैं, द फेमिनिन पावर, सो 10 hands, courageous, valor, all such things, fine. Now, when they thought that in the Vedic philosophy that there are multiple divine forms and they worship them, and these divine forms they control the human life. What did they do? They control the human life, and they have a definite role. As I was discussing, that can fire do anything other than burning? क्या अग्नि जलाने के अलावा कोई काम कर सकती है? उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना बर्न करना। वाटर टू कूल डाउन, रेन टू फॉल डाउन, उल्टा होने लगेगा क्या? नीचे से बादल ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं। सो ऑल दीज कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज, फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दीज कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज, फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट द रोल इन द नेचर, हु हैज असाइन्ड देम दिस रोल इन नेचर? क्या सबने अपने अपने रोल खुद ही निर्धारित कर लिए? सबने अपनी क्वालिटीज, कैरेक्टर्स खुद ही निर्धारित कर लिए? इनको कौन डिसिप्लिन और कंट्रोल कर रहा है? इफ दे आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ, हु इज कंट्रोलिंग देम? Now this idea and the henotheistic tendencies in Vedic philosophy that led to the idea of an single ultimate supreme reality. इन्होंने कहा कि भाई या तो आप ये मान लीजिए कि इनको कोई नियंत्रित नहीं कर रहा, ये खुद से नियंत्रित हो रहे हैं। खुद से कैसे नियंत्रित हो जाएंगे? फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे है? उन्होंने देखा कि जब सूर्य का अस्त होता है तब चंद्रमा निकलता है, तो एक कोऑर्डिनेशन है ना। बारिश होती है, उसके बाद धूप निकलता है, जब बादल हुआ, बारिश हुई, फिर धूप निकल गया, दिन के बाद रात हो रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन है नेचर के फोर्सेस में, डिवाइन फोर्सेस में। वो कोऑर्डिनेशन कहां से आ रहा है? सो व्हेन दे गॉट इनटू सच काइंड ऑफ थिंकिंग, देन दे रियलाइज्ड दैट ईदर देयर मस्ट बी सम अल्टीमेट रियलिटी। इफ द रीजन फॉर रेन इज क्लाउड एंड द रीजन फॉर क्लाउड इज द वाटर वेपर, द रीजन फॉर वाटर वेपर इज रिवर, so there must be some ultimate reason for all these reason. If there is some reason for existence, so there must be the ultimate reason for all the existence, is it not? Or otherwise what would you say? If I would ask you that something, let's say some wooden object is there, wooden table, what is the source of wooden table? Tree. What is the source of wooden table or chair or wooden object? That is tree. What is the source of this tree? Forest. सीड ना, पेड़ कहां से आता है? बीज से आता है, सीड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस सीड? अगेन सम फ्लावर, दैट फ्लावर, अगेन सम ट्री, दैट ट्री, अगेन सम सीड, नाउ यू गेट ट्रैप्ड इनटू नाउ। सो लाइकवाइज इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन द फिजिकल फोर्सेस ऑफ नेचर एंड द रीजन बिहाइंड देम, सो ईदर यू विल गेट ट्रैप्ड इनटू दिस सर्कुलर फैलेसी और इन्फिनाइट रिग्रेस, दोनों में से एक ही चीज है, या फिर एक अल्टरनेट लॉजिकल पॉसिबिलिटी है कि आप ये समझें कि देयर इज सम अल्टीमेट रियलिटी फ्रॉम विच ऑल रियलिटीज आर एमर्जिंग। इज इट नॉट? दो ही पॉसिबिलिटी है ना। या तो आप कहें कि हमें नहीं पता, या आप कहें कि नहीं, इन सभी कारणों का भी कोई कारण होगा, कोई एक कारण होगा, एंड टू पुट अ स्टॉप यू मस्ट से दैट इट इज द अल्टीमेट रीजन फॉर ऑल दी थिंग्स हैपनिंग इन दिस एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। ठीक है, तो उसी अल्टीमेट रियलिटी को वैदिक फिलॉसफी में ब्रह्म कहा गया है। उसी अल्टीमेट रियलिटी को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। दैट इज द
अंडरलाइंग फैक्टर और रीजन बिहाइंड ऑल रियलिटी एंड इट्स फॉर्म्स। तो रियलिटी में जो भी है, फिजिकल है, साइकिकल है, फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, सो द इंटायर रियलिटी दैट एमर्जेज फ्रॉम दैट अल्टीमेट रियलिटी। अगर आप अल्टीमेट रियलिटी के पोजीशन को स्वीकार नहीं करते तो आपके पास दूसरा क्या स्थिति है, क्या संभावना है? दूसरी दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो अल्टीमेट रियलिटी के पोजीशन को एक्सेप्ट कीजिए, या ये मान लीजिए कि मुझे नहीं पता। अगर आप ये मान लेते मुझे नहीं पता, देन यू हैव इंटर्ड इनटू द स्केप्टिसिज्म और एग्नोस्टिसिज्म। तब आप स्केप्टिक माने जाएंगे या एग्नोस्टिक माने जाएंगे। वो फिलोसॉफिकल पोजीशन क्या है कि हमें नहीं पता, या फिर हमारी बुद्धि अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो बाद वाली जो स्थिति है उसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं, अज्ञेयवाद बोलते हैं। अभी हमें नहीं पता, अज्ञेय है एग्नोस्टिसिज्म। या फिर आप कह दें कि नहीं, हम जान ही नहीं सकते, इट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू नो दैट इज कॉल्ड निराशावाद, दैट इज स्केप्टिसिज्म इन फिलोसॉफिकल पोजीशन। इज इट क्लियर? तो क्या ये इंटेलेक्चुअल डिजायर को सेटिस्फाई कर देगा? नहीं करेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि देयर इज समथिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग इज एमर्जिंग। आपको उस इन्फिनाइट रिग्रेस को रोकने के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। दैट दिस इज द समथिंग from which everything has emerged. This is the prime mover. From all motions and changes in the world are emerging or initiating. So the Vedas, they consider that ultimate reality as the supreme being or the Brahma. बात आ रही है समझ में? तो अब यहां पर हम मान नहीं रहे, यहां पर पॉसिबिलिटी ही दो है। यू कैन चूज ईदर ऑफ देम। यू कैन चूज टू बी एन एग्नोस्टिक, यू कैन चूज टू बी एन स्केप्टिक, और यू कैन चूज टू एक्सेप्ट दी। अच्छा, अब इन दोनों में लॉजिकली साउंड कौन सा पोजीशन है? स्केप्टिसिज्म का, एग्नोस्टिसिज्म का, या फिर अल्टीमेट रियलिटी के एक्सेप्टेंस का? स्केप्टिसिज्म का। कैसे? हाँ, मानने की बात नहीं है, वो लॉजिकल पॉसिबिलिटी है और दो ही है। इफ यू डिनाई वन, यू ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू दैट वन, सो दैट इज नॉट मीन्स आस्था। हाँ, नहीं, उसके आंसर है उनके पास। क्या है? उन्होंने पूरी थियरी है उसकी कि ब्रह्म क्या है। वो एक एक चीज बताएंगे उसका आपको क्या है। सो वी विल गेट इनटू दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट। यू हैव ओनली टू पोजीशंस, ईदर 0 और 1। You have only two positions. There is one supreme reality or there is no supreme reality. You have, क्या 0 1 के अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लॉजिकली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये फेथ की बात नहीं है, वी आर नॉट डीलिंग विथ फेथ हियर। मेरी कोई श्रद्धा ब्रह्म में नहीं है। So we have only two logical possibilities, either the 0 or the 1. 0 leads to skepticism, agnosticism. Will I be happy? Is the quest or the question answered? No. So the only possibility then remains the ultimate reality. So there is one ultimate reason for all reason, and that ultimate reason is the Brahma, what they call in Vedic philosophy. अब ये जो ब्रह्म है, इसका रूट वर्ड क्या है? ब्रीह। इसका रूट वर्ड क्या है? ब्रीह। ब्रीह। ब्रह्म शब्द किससे बना है? ब्रीह से बना है, ब्रीह धातु से बना है। और ब्रीह का अर्थ क्या होता है? ग्रो, टू एक्सपैंड। So something which grows and expands into this entire reality, that is Brahma. Something which grows itself, expands itself in the form of various beings, living beings, non-living beings, objects in this universe, that is called Brahma or the supreme being. बात आ रही है समझ में? So the Vedic philosophers, they consider it as the supreme reality. Now tell me that what would be the nature of the supreme reality? Will everything emerge out of it? If it is the final cause, the ultimate cause of everything, then it is necessary for everything to originate from this, the ultimate cause. अगर ये सभी चीजों का कारण है, तो necessarily everything in this universe must emerge out of it. So it is the reason behind birth of everything in the universe. Okay, तो सभी चीजों का जन्म किससे होता है? इसी ब्रह्म से होता है। Who maintains this entire reality? Who maintains the entire existence? There cannot be another. Listen carefully. There cannot be another supreme reality. Logically, there can be only one supreme reality. Can there be two supreme realities? Is it logically consistent to have two supreme realities? Nahi. It is logically contradictory. It violates the idea of the term supreme itself. है ना? So there cannot be logically two supreme realities, only one. And if there is only one supreme reality from which everything is emerging, then who is taking care of the entire reality? The very supreme reality, ultimate reality, Brahm. So Brahm is also the originator, it is also the caretaker or coordinator of entire universe. And the third thing, we find
that if there is birth in universe or existence, then there is death also, destruction also in existence and life. So after death, where all these things again return to? क्या कहीं तीसरे जगह चले जाएंगे? क्या इस अल्टीमेट रियलिटी के अलावा किसी तीसरे जगह चले जाएंगे? अगर तीसरे जगह चले जाएंगे तो वो दूसरी अल्टीमेट रियलिटी हो जाएगी. Okay, so they return back to the same ultimate reality. So there is no other possibility. So they say that if there is one factor behind every factor, one ultimate reason behind everything happening in this universe, so ultimately and necessarily everything in the universe must get birth out of that, must be taken care of by that, and must after its death or destruction return to that fundamental principle. Is it clear? क्या ये necessary है या इसमें कोई ऑप्शन है? क्या इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इधर समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है समझ? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. इफ समथिंग इज गेटिंग बर्थ फ्रॉम दिस अल्टीमेट रियलिटी, सो हु विल टेक केयर ऑफ दिस इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग? द वेरी सेम अल्टीमेट रियलिटी एज इट हैज एमर्ज्ड आउट ऑफ इट. उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके पावर्स, उसकी क्वालिटीज कहां से आएंगी? उसके गुण अवगुण कहां से आएंगे? उसी अल्टीमेट रियलिटी से आएंगे. क्या और कोई ऑप्शन है? क्या कहीं तीसरे सोर्स से आएंगे? अगर तीसरा सोर्स हो गया तो अल्टीमेट रियलिटी के अलावा कुछ चीज है जो कि एक अलग रियलिटी है, विच विल कॉन्ट्रडिक्ट द वेरी आइडिया ऑफ हैविंग अल्टीमेट रियलिटी. ओके, नाउ it has a certain lifetime. We find that our experience is that existence, so in this things are changing, you know, objects are continuously dying, taking birth. हमारा ही शरीर है तो इसमें हर क्षण कितने नए सेल्स का जन्म होता है, डेथ होता है ना? Millions of cells, they continuously die, you know. Likewise, number of people, number of objects, things changing, moving, so everything, this change and dynamism. Now when there is death, when there is destruction, so from to where it goes after death or destruction, what is its ultimate destiny? क्या किसी तीसरे जगह चला जाएगा? or will it return to the same ultimate reality? What is the possibility? Focus here, it is pure logic. अगर ये कहीं तीसरे जगह चला गया, so it will become some another reality. It will become some another reality which is different from this ultimate reality. So it will be a contradictory position. That is why it is logically necessary, it is essential that if there is one ultimate reality, everything is maintained by that, and after destruction it returns to this ultimate reality. इसीलिए ब्रह्म का जो सिद्धांत है वैदिक दर्शन में, उसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्म ही सभी वस्तुओं का कारक है, सभी का जन्म इसी से होता है, और सभी अपने जीवन काल के बाद वापस इसी में नष्ट होकर मृत्यु के बाद मिल जाते हैं. सो ब्रह्म, इट इज द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, अ सुप्रीम बीइंग एज अ सुप्रीम रीजन behind all the things, behind all the objects, which is also the underlying principle. Now what is the creator, what is the reason behind the ultimate reality? There is no reason, it is self produced, इट इज सेल्फ ओरिजिनेटेड. क्या उसका कोई रीजन हो सकता है? नहीं. फिर वो आप चले जाएंगे इन्फिनाइट रिग्रेस में. उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये पोजीशन अडॉप्ट किया. तो वो जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म स्वयं का कारण है, उसका कोई कारण नहीं है. उसके गुण और स्वरूप क्या है? उसके गुण और स्वरूप क्या है ब्रह्म के? आपने कहा कि फिर उसके बारे में क्या बात करेंगे. तो उस अल्टीमेट रियलिटी का अब बात है कि नेचर क्या होगा. आई विल जस्ट टेक 2 minutes, यू नो. उस अल्टीमेट रियलिटी का नेचर क्या होगा, क्या स्वभाव होगा, क्या उसका कोई आकार होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस में जो हमारा एक्सपीरियंस है, देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ शेप्स, यू नो, ऑब्जेक्ट्स. नाउ ऑल दो शेप्स, ऑल दो फॉर्म्स, फ्रॉम वेयर दे हैव बीन डिराइव्ड, इफ वी अडॉप्ट दिस आइडिया, देन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम अल्टीमेट रियलिटी. सो दैट अल्टीमेट रियलिटी, दैट ब्रह्म, फिर उस ब्रह्म में वो सभी रूप और आकार होंगे, वो सभी गुण होंगे. तो ब्रह्म का वो स्वगुण, ब्रह्म का वो सगुण स्वरूप है. क्या है? ब्रह्म का सगुण स्वरूप है. सगुण मीन्स यू एट्रीब्यूट ऑल क्वालिटीज टू दैट अल्टीमेट रियलिटी, की सभी जो गुण हैं, सभी रूप आकार, सब उसी से निकल रहे हैं, यानी सब उसमें है. नाउ दिस इज द डिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ ब्रह्म, दैट इज द सगुण फॉर्म, जिसमें आपका ये समझ है कि जितने भी आपको फॉर्म्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो सभी उसी में है, उसी से निकल रहे हैं. बात लॉजिकल अपीयर होती है, क्योंकि यदि वही सोर्स है और कोई दूसरा सोर्स ही नहीं, तो सब उसी से इमर्ज हो रहे हैं. तो वैसी स्थिति में उस ब्रह्म को ईश्वर कहा गया. क्या कहा गया? ईश्वर, जिसमें कि सभी जो गुण हैं उसमें है, सर्वव्यापी है, सब गुण है उसमें,
है ना. सो यू एट्रीब्यूट ऑल क्वालिटीज टू दैट ब्रह्म. बट हियर इज अगेन अ लॉजिकल प्रॉब्लम. The logical problem is that if you attribute qualities to something, are you not denying the other possibilities to that object? Is God limited only by those qualities? Is it can be defined by only those qualities? क्या उन qualities के परे और कुछ नहीं है? क्या हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है, our mind, क्या उसके beyond कुछ नहीं है या उसके beyond भी कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है ना, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे अनुभव की दुनिया, उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है. सो वंस वी एट्रीब्यूट द क्वालिटीज टू द ब्रह्म, वी लिमिट इट. सो एवरी एट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल, इफ आई से दिस इज मेड ऑफ स्टील और मेटल, व्हेन आई से दैट इट इज मेड ऑफ मेटल, सो इट ऑटोमेटिकली डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड. इज इट नॉट? जैसे मैंने कह दिया मेटल का बना है, जिसकी क्वालिटी हो गई मेटेलिक, तो क्या ये वुडन है? नहीं. सो वंस आई एट्रीब्यूट वन क्वालिटी, आई डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर क्वालिटी. सो वंस वी एट्रीब्यूट ऑल द क्वालिटी टू द ब्रह्म और द ईश्वर, देन वी डिनाई अदर पॉसिबिलिटीज टू इट एंड लिमिट इट इन अ सेंस. सो दैट इज अ लिमिटेड ब्रह्म. उसको शंकराचार्य ने क्या कहा? अपर ब्रह्म कहा या ईश्वर कहा, निम्न ब्रह्म कहा. क्या कहा? निम्न ब्रह्म. तो इससे भी ज्यादा सुपीरियर फिलोसॉफिकल पोजीशन क्या है कि भाई उसमें सभी गुण हैं, परंतु वह उन गुणों से सीमित नहीं है. उसमें उन क्वालिटीज के बियॉन्ड भी जो भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, सब उसमें. हाँ हाँ. कि अगर मतलब रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी में हम वापस ही जाएंगे जो लॉजिकल साउंड कर रहा है, तो फिर ये हेल, हेवन, नर्क और स्वर्ग, यमराज आएगा, ये सब कैसे? हाँ, तो उपनिषद में सब खत्म हो जाता है ना. कठोपनिषद, इसीलिए मैं कहता हूँ कठोपनिषद सभी पढ़िए. पतली किताब है, छोटी सी. दैट इज दी हाइट ऑफ इंडियन फिलोसफी. 2 किताबें, कठोपनिषद, गीता, ये हर किसी को पढ़नी चाहिए. कठोपनिषद पतली सी किताब है, सब पढ़िए, जरूर पढ़िए, है ना. तो उसमें सब चीज को ध्वस्त किया. जब यम ने नचिकेता से 3 वरदान मांगे, अंतिम वरदान मांगा, तो नचिकेता ने कहा, वाजिश्रवा का बेटा था, नचिकेता ने कहा कि मुझे बताओ मृत्यु क्या है. यमराज ने कहा मेरा बिजनेस खत्म करा देगा, मेरा तो पूरा धंधा ही मृत्यु पर बेस्ड है. अल्टीमेटली थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, द यमराज, द गॉड ऑफ डेथ, सेड दैट डेथ इज इल्यूजन. डेथ क्या है? इल्यूजन है. कठोपनिषद का वो लॉजिकल कंक्लूजन है कि डेथ इज इल्यूजन. इट इज जस्ट द बॉडी चेंजेस, द सोल इज इटर्नल, द सोल इज परमानेंट. सोल को किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता. एंड डेथ इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ द फॉर्म का इल्यूजन है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बाद में सब खत्म हो जाता है, अंत में क्या बचता है? वही. नाउ सी, अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई अब उसमें अगर आपने क्वालिटीज एट्रीब्यूट कर दिए तो क्या हो गया? लिमिट हो गया. वो फिलोसॉफिकली साउंड नहीं है. तो उसको और बेटर फिलोसॉफिकली साउंड बनाने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें सभी क्वालिटीज हैं और भी जो पॉसिबिलिटीज हैं सब इसमें हैं. अब वो जो पोजीशन होगा ब्रह्म का, क्या हम उसका कोई आकार दे सकते हैं? अगर हम उसमें वो भी पॉसिबिलिटी शामिल कर रहे हैं जो हम नहीं जानते, then it becomes indeterminate as we don't know what are the possibilities beyond our perception, beyond our understanding. So that is the indeterminate form of Brahma, that is called निर्गुण ब्रह्म. उसको क्या बोलते हैं? निर्गुण ब्रह्म, जो इनडिटर्मिनेट है. क्या उसका कोई शेप हो सकता? नहीं, निराकार है. जब उसका आकार नहीं, जब उसके क्वालिटीज के बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसीडेंटल ब्रह्म, अनिर्वचनीय, जिसके विषय में हम बात नहीं कर सकते. तो जो डिटर्मिनेट ब्रह्म का आइडिया है वैदिक फिलॉसफी में, दैट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर अ वर्शिपर. अब दोनों में से बताइए, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में से एक वर्शिपर के लिए, डिवोटी के लिए सेटिस्फैक्टरी कौन है दोनों में से? सगुण है. उसका आकार है, उसके गुण है, उसको पता है मैं इससे प्रेम करूंगा, ये भी मुझसे प्रेम करेगा, कुछ मांगूंगा दे देगा, है ना. अब निर्गुण क्या है? अगर किसी को, वर्शिपर को, डिवोटी को ये पता हो कि मैं बोल रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा है, जो सुन रहा है उसका कोई आकार ही नहीं है, तो क्या उसके लिए सेटिस्फैक्टरी होगा? किससे बोलेगा जाके, है ना. सो फ्रॉम द डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, द डिटर्मिनेट ब्रह्म इज मोर फेवरेबल, सुटेबल. एंड फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब दार्शनिक को क्या मतलब है? दार्शनिक को तो फिलोसॉफिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो उसको तो सगुण ब्रह्म में नहीं मिलेगा. इसलिए कबीर जैसे लोग वो निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं. दैट इज द हाइट ऑफ इंडियन फिलोसफी. नो, कबीर, द थॉट्स ऑफ कबीर, पूरे भारतीय दर्शन का शिखर है कबीर का दर्शन. एवरीबडी मस्ट रीड कबीर, मस्ट रीड. एग्जाम के बाहर भी कबीर को पढ़िए ही पढ़िए जीवन में. तो व्हाट कबीर सेज, द निर्गुण ब्रह्म.
नाउ दैट साउंड्स फिलोसॉफिकली बेटर, पर उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, इनडिटर्मिनेट नहीं, तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, पर इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है. दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रह्म दैट कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड लॉजिकली. देयर वी स्टॉप. पता है इसमें, क्योंकि हमारी माइंड वहां पर जाकर रुक जाती है. द इनडिटर्मिनेट ब्रह्म, उसी को कहा गया है पर ब्रह्म. क्या कहा गया है? पर ब्रह्म. पर ब्रह्म, द हाइयर ब्रह्म. और जो सगुण ब्रह्म उसको क्या कहा गया? अपर ब्रह्म, यानी निम्न ब्रह्म, ईश्वर, जिसको हम स्वरूप जिसका गढ़ते हैं. हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, है ना. तो कैसा स्वरूप गढ़ते हैं? सर्वशक्तिशाली, सर्व बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी. ऐसा तो बहुत पतले दुबले हनुमान जी, है ना, कमजोर हैं, खुद ही खांस रहे हैं, दिक्कत है, खुद ही दवाई पी रहे हैं. तो ऐसा तो ईश्वर हम नहीं करते. हम ऐसा ईश्वर करते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ है. बट दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फिलोसॉफिकली. वाई? क्योंकि जब आप क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं तो उसको लिमिट कर देते हैं. ये बात समझ में आ रही है? यही आइडिया आपको ब्रह्म में, ब्रह्म का जो विचार. तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है या जानने का प्रयास करता है, नाउ दैट अल्टीमेट रियलिटी कैन इट बी नोन बाय एक्सपीरियंस और लॉजिक? नहीं, क्योंकि इनडिटर्मिनेट है. तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है? यू कैन ओनली रियलाइज इट. व्हाट इज द ओनली लेफ्ट पॉसिबिलिटी? आप उसको ना तो तर्क से जान सकते हैं, ना तो आप उसको कर्म से जान सकते हैं. तो कैसे जान सकते हैं? रियलाइजेशन से. दैट इज द ओनली पॉसिबल. एंड वंस यू सेल्फ रियलाइज, all doubts are dispelled instantly. All doubts are dispelled, and there is the identification of the individual soul with the ultimate soul, supreme soul, and the person is instant. इधर ध्यान दीजिए, समाधि ना, क्लास में नहीं, समाधि में जाना है, इधर ध्यान दीजिए. So the individual soul is instantly, individual soul becomes instantly aware of its actual nature as the supreme soul. तो क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म को जानता है, वो स्वयं ब्रह्म में रूपांतरित हो जाता है, अपने वो मूल स्वरूप को, चरित्र को जान जाता है. दिस इज द आइडिया ऑफ ब्रह्म. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Okay, so we'll take down the notes tomorrow and proceed on with Atma and Reet. Is there any doubt with respect to today's class? Anyone? So is it something to be remembered? Is it something to be remembered or to be logically understood? So understand it logically. It will be very interesting. Otherwise, it will become very boring when you start to mug it up, memorize it. Understand it, it will be so interesting and fascinating. Is it okay? Fine, thank you. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो सोल की तो वो बात करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, यू नो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ सोल एंड दी अल्टीमेट रियलिटी. तो अल्टीमेट रियलिटी के पास क्या जाता है? एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. शंकराचार्य ने अपने दर्शन में क्या कहा है ना, कि इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. हाँ, शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीवो ब्रह्मैव नापरः. जीव यानी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं. Only that is whatever our doubts or problems of life are, that is due to ignorance of not identifying or knowing our true nature or character as the ultimate reality. So once we focus on the conscious aspect, on our consciousness, the non-physical aspect of our reality, all our problems and dilemmas are removed. तो वापस क्या जाता है? वो आइडेंटिटी जाती है ना, वो इग्नोरेंस समाप्त होता है. The identity goes there, the identity of unity, non-duality, non-duality. There is no two, there is ultimately one. So this thing restores. लिबरेशन में क्या होता है? ये चीज रिस्टोर हो जाती है. बंधन में, बॉन्डेज में क्या होता है? वो डुअलिटी बनी रहती है. So they both are antithetical to each other. Okay? So liberation is about unity, the removal of dualism. और बॉन्डेज क्या है? डुअलिटी का एहसास होना. सो दैट्स देयर. एनी डाउट? हाँ. प्रकृति और ब्रह्म एक है. अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बाहर कर ले डिस्कशन, है ना. डू यू वांट टू हैव योर पार्ट? कैन वी हैव स्टिल सम मोर डिस्कशन ओवर द डाउट्स? डू यू वांट टू हैव सम डिस्कशन? और दोज हु वांट टू लीव, यू कैन लीव. ओके? एंड स्टिल इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, देन वी विल कंक्लूड इन 2 minutes. यस, स्टिल. क्या हम प्रकृति को ही ब्रह्म कह सकते हैं? ये पोजीशन भी आपको वेद में समझ में आता है कि आप क्या कह रहे हैं भाई. देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ रियलिटी, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ रियलिटी, दैट इज नेचर, दैट इज नेचर. अच्छा,
फिर हम अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि इन सभी के पीछे का कारण क्या है, ये सभी कहां से उपजते हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस में उसको नेचर कह सकते हैं। अगर हमारा जो एक्सपीरियंशियल आउटलुक है उसमें सभी चीज को हम अगर मिला दें तो क्या बनती है, प्रकृति बनती है। लेकिन ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट क्या है, प्रकृति भी तो स्वयं में परिवर्तनशील है, तो उसका जो वर्ल्डली एस्पेक्ट है वो नेचर है, ठीक है, उसका वर्ल्डली एस्पेक्ट क्या है, नेचर, ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट सुप्रीम रियलिटी, ठीक है। तो उसमें फिर आपको फर्दर आउटलुक के बेसिस पर ये डिवीजन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि नेचर तो सुप्रीम रियलिटी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नेचर में हम चेंजेस देखते हैं। एनीथिंग विच चेंजेस इट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट। इफ समथिंग इज नॉट परमानेंट कैन इट बी सेड टू बी अल्टीमेट रियलिटी? नो। हाँ, अभी साइंटिफिकली भी देखें तो अभी जैसे कोई भी चीज है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स तो बेसिक लेवल पे तो सब तो एक ही है, प्रकृति मतलब चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो चेंज हो रहा है वो तो वही एटम ही, लेकिन वो भी तो चेंज हो रहा है, फॉर्म्स बदल रहे हैं, हाँ है वही, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हैव वी स्टॉप्ड टिल एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? वी हैव वेंट फर्दर, क्वार्क, लेप्टॉन, एवरीथिंग, मुऑन, यू नो, टाउ, एवरीथिंग। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस सर्च। तो वो साइंटिफिक सर्च है। लेकिन जब हम फिलोसॉफिकल सर्च करते हैं, जब हम उस साइंस इट कैन नॉट डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जब हम फिलोसॉफिकल सर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास मतलब जब हम ऑल परवेडिंग आइडिया को लेते हैं तो हमारे पास वो चीज नहीं होती कि हम उसको तोड़ के देखें, करके देखें। देन वी टेक द हेल्प ऑफ लॉजिक, देन वी टेक द हेल्प ऑफ लॉजिक। सो इन फिलॉसफी लॉजिक इज द टूल, इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर द टूल, लेबोरेटरीज, एक्सपेरिमेंट्स, दे आर द टूल। बात आ रही है समझ में? तो नहीं, वो भी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल खोज रहे हैं। साइंटिस्ट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर थियरी ऑफ एवरीथिंग। वी हैव हाँ, एक तो वो बाहर खोज रहे हैं, वहां पे भी डुअलिटी होगी, अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे एग्जिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस का हल निकल जाएगा? लेट्स से दैट वी फाउंड थियरी ऑफ एवरीथिंग, है ना, कि भाई एटम, एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, हम और चलते चले गए। लेकिन क्या इससे इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, मैं कौन हूं? क्या इससे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा, हु एम आई? नहीं मिलेगा ना। देन स्टिल, सो दिस इज द स्पिरिचुअल सर्च, दैट इज द एम्पिरिकल सर्च। दोनों दो रास्ते और दोनों चलते रहेंगे। वो तो मतलब कि आपको अनंत तक जाएगा, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज, और अगर वो किसी एक सीमा तक पहुंच गया तो नॉलेज की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए नॉलेज की पॉसिबिलिटी हमेशा यूनिवर्स में होती है, हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वो कैरेक्टर है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग डिस्कशन। प्लीज बी वेरी अटेंटिव टू द डिस्कशन एंड यू योरसेल्फ थिंक। और जब जो चर्चा है उसको अगर आप लॉजिकली समझने लगेंगे तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? याद करने की कोई जरूरत नहीं, बोलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमने देखा भी कि उसमें कई थे जो साइंटिस्ट ही थे। एरिस्टोटल वो बायोलॉजी के फादर थे, है ना, कई सारे मैथमेटिशियंस थे। सही बात है, वो उसका कैरेक्टर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में? कठिन है? याद करने की बात है? कुछ नहीं है, लॉजिकली समझना है, ठीक है। एनीवन ऑनलाइन, दोज हु हैव जॉइंड ऑनलाइन, एनी डाउट? ओके, थैंक यू।